हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। अनुवाद जल मध्यरे एहीपरि भाबुथिबा बेले श्री ब्रह्माजी निकटरे दुई थर शुणिले जे दुईटी अक्षर एकत्र होइगले दुई अक्षर मध्यरु गोटिए हेउछि स्पर्श वर्णर षोडश अक्षर और अन्यटी हेउछि एकविंश अक्षर वर्ण। ये दुईटी अक्षर जोग होई सन्यास जीवनर धन होइगले, अर्थात जप शब्द सृष्टि होला। हरे कृष्ण। तेणु ये श्लोक बहुत गुरुत्वपूर्ण। ब्रह्माजी किभଳି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତନରେ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଆଦେଶ ମିଳିଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେଟା ହଉଛି ତପଃ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ର ଜୀବନରେ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଏଇ ଯାହା କହନ୍ତି ଜଗତକୁ ତପସ୍ୟା କରିକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୟା ହଉଛି ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆଧାର। ତେଣୁ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହବ, ଜୀବନରେ ସୁଫଳ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପଶୁ ସମାଜରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ କିଭଳି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସଂଗଠିତ ହଉଛି। କେରଳରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ମେସେଜ ପଠେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ କେରଳରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଗୋଟେ ସପୁରୀ ଭିତରେ ବମ୍ ପୁରେଇକି ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 2 ମାସ ପରେ ଦେଖୁନ ପ୍ରକୃତି କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି। ତେବେ ମୋର ରୁମରେ ଜଣେ ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ବାଳ କେବେ ପାଚେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ହୁଏ ନା ବାସ୍ତବରେ ଆୟୁ ହରତି ବୈପୁଂସା। ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଲେଖିଲେ ଉଦିତ ଅରୁଣ ହଇଲ ଅସ୍ତ ଦିନ ଗେଲା ବୋଲି ହଇଲ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବେ ନା ଭଜିଲେ ଯଶୋଦା ସୁତ ଚରମେ ପଡିବେ ଲାଜ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହାତରୁ ପଳେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢେ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆପଣ କେବେ ଦୟା କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବୁଝିପାରିବି ଠିକଣା ଭାବରେ। ଆଜି ବି ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତିଦିନ ରହିଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ଜଗତଟା କଣ, କେମିତି ଏଠି ରହିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କୋଉଠି। ନଚେତ ଆମମାନେ ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ଦାର୍ଶନିକ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜୀବ ଗୋଟେ କଣ କରେ ନା ସବୁବେଳେ ତାର ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ତିଆରି କରେ। ଆପଣ କହିବେ ହଁ ଯେ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛୁ, ଆମେ କିଛି ସୁଖ ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ତ ସବୁ ତ୍ୟାଗୀ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କଣ ସୁଖ? ସେମିତି ଗୃହସ୍ଥ ହଉ ବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହଉ ବା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହଉ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ହଉ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ କେବେ ହେଲେ ବାହାରିବାକୁ ଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଭିଳାଷ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ମୋର ଏଟା ବେଡ୍, ମୋ ଏଇ ବେଡ୍ରେ ଆଉ କେହି ଶୋଇବେନି, ମୋର ଏଟା ପାଣି ବୋଟଲ, ମୋ ପାଣି ବୋଟଲ ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେ ମୋ ପାଣି ବୋଟଲ କେବଳ ମୁଁ ପାଣି ପିଇବି, ଏ ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ କେହି ପିଇବେନି, ମରିଯାଉ ପଛେ ସେ, ତାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଣିକି ଇଏ ଦେବି କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ବୋଟଲ ଆଉ କେହି ପିଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ରୁମ, ମୋ 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 ବେଡ୍, ମୋ ବେଡସିଟ୍, ମୋ ଲୁଗା, ଏଇ ମୋର ଭାବନାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଜନକ ମହାରାଜଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଜନକ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ। ଥରେ ଋଷି ମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ବହୁତ ଆମର ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମତେ ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ।
ବା ଆମେ ବିରକ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ସେ ସବୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡା ସବୁ ମାନେ ଖରାପ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଏଇଭଳି ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ଜନକ ମହାରାଜ ଜଣେ ରାଜା ପୁଣି ଗୃହସ୍ଥ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକା ସମ୍ମାନ ଦିଆହଉଛି। ତେବେ ଥରେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ଏକ ନଦୀ କୂଳରେ, ପବିତ୍ର ନଦୀ ତଟରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ, ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଅଧା ହେଇଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖା ହେଲା କଣ ନା ଋଷି ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ କଣ ହେଲା, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଏବଂ ଜନକ ମହାରାଜଙ୍କ ମହଲରେ, ରାଜମହଲରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେ ଯୋଉ ବାବାଜୀ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାଧା କରୁଥିଲେ ସବୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ, ନିଜ ଜିନିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜନକ ମହାରାଜ ସେମିତି ମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଫିଆଁ ଲିଭିଗଲା ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଜନକ ମହାରାଜ ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତେବେ କଣ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲେ? ନା ଆମର କୌପୁନି ଆଉ ଏଇ କମଣ୍ଡଳୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆଣିବେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ପୁନଃ ସେଟାକୁ ଠିକ ହେଇଯାଇପାରିବ। ସେଥିଲାଗି ଯୋଉ ଆମର ଇସ୍କନ କୁହାଯାଏ, ବିରକ୍ତ ସମାଜରେ ଯିଏ ମନ୍ଦିର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ରହିବ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ହାତୀ ପୋଷିବା ଯେମିତି କଷ୍ଟକର, ମନ୍ଦିର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରଖିବା ସେମିତି କଷ୍ଟକର। ବେଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ନିକିତିରେ ରଖାହବ କେବେ ହେଲେ ସବୁ ବେଙ୍ଗ ରହିବେ, ଫଟ ଫଟ ଡେଇଁକି ପଳେଇବେ। ସାଧୁ ସେମିତି, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ କହିବ ଜିନିଷ ପତ୍ର, ବହୁତ ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖିଛି, ସେ ବହୁତ ଆସକ୍ତ, ତାକୁ ଛାଡିବନି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ, ସେ ଆଉ ନଥିବ। ସେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ବସିଥିବ, ସେଠି କଣ ଗୋଟେ ସେବା ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ସାଧୁର ଜୀବନଟା ଏଇଭଳି ହବା ଦରକାର, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ପରିଗ୍ରହର ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡକୁ ପଠା ହବ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତପସ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ସମାଜରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରୁଛି, ଭୋଗ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିକି ସେ ପଶୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେଥିଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆମର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି, ନିର୍ବାଦରେ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, କିଛି ହୃଦୟରେ ଦୟା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଉପଶୃଣତ। ଏହା ବହୁତ କଣ ନା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଉପଶୃଣତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଉପନୟନ ଶବ୍ଦ ସଦୃଶ ଏକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଉପନୟନ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଶିଷ୍ୟକୁ ତପସ୍ୟାର ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆନୟନ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମୟ ସ୍ଥାନ କାଳ ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆମର ଇସ୍କନର ଯାହା କୁହନ୍ତି ସାଧୁଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ରମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ଆଶ୍ରମରେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ସେଠି କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଅଭିନବ ସମ୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିଲେ ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ। ଆଉ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ରୁହେ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସର୍ତ୍ତ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସେଥିଲାଗି ଶ୍ରୀଲ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆମର ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ପଇସା ଦେଇକି ହବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଟା କଣ ହେଇଛି, ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମନ୍ଦିର ହେଇକି ରହିବ। ସେଥିଲାଗି ଯୋଉମାନେ ଆଗନ୍ତୁକ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ବା ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନୋଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ସେବା କରିବେ। ଆଜି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପଇସା ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ହଉନି। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କବିରାଜ ସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷଣ ହଏ ସାଧୁର ଭୂଷଣ। ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମାନିବା ହଉଛି ସାଧୁର ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମ। ଯଦି ସାଧୁ ଏଟାକୁ ନ ପାଳନ କରିବ କିଏ ଜଗତରେ ପାଳନ କରିବ? ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ତପସ୍ୟା କରିବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଏ। ଯୋଉଠି ପୂର୍ବ କାଳରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇସ୍କନରେ ଏମିତି ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ କଣ ରହିବା ଦରକାର, ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ରହିବା ଦରକାର। କି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କି ଗୃହସ୍ଥ
ସମସ୍ତେ कौन करा दरकार ना प्रतिदिन रिपोर्ट गुरु पाखु जावा दरकार गुरुंकर आज्ञा से भोजन करिवो गुरुंक आज्ञा से शयन जीव सब किछि गुरु को नहीं कि तार जीवन संगठित हवा दरकार ब्रह्मचारी जीवन रे आ सेतरे तपस्या तपस्या कले व्यक्ति कौन हम शिला सुबक स्वामी गुरुदेव गोटे बहुत सुंदर कथा कहते जो मैंने भोगी लोक संसार रे से माने यौवन समय अर्थात 12 वर्ष रु 21-22 वर्ष पर्यंत सुंदर देखा जाए आ वृद्ध बेल को गाल फाल फसिक मुह मतलब देखिले बहुत खराब लगे किंतु जे ब्रह्मचारी विरक्त से जेते वृद्ध हम से सेते तेजियान देखा जाए तार इंद्रिय को बेले बेले भक्त माने पचारत प्रभु आपण सुखी गले वास्तव रे एटा गोटे ब्रह्मचारी को एई शब्दटा कहवा ता पई मृत्युठु बड़ी बड़ दंड वे तो से कौन भाबुची तार ठिकाना ने थरे आउंटेंट बहुत सुंदर भक्त अछंती तांग ना रामभद्र प्रभु अंशर मंदिर तांको थरे जने माता जी ए कथा कहते से बहुत जरे क्रोध प्रकाश करते ब्रह्मचारी को कहा जीव तुम शरीर संबंधी वार्ता तक कहा जीवन सेतला कि हमर ब्रह्मचारी आश्रम रे फुल मिरर कौन सी ब्रह्मचारी आश्रम रे रहिया कथा नहीं जोड़े ब्रह्मचारी तार पूर्ण शरीर को केवे देखिवा कथा नहीं एड़ा सब तार धर्मर पतन जेमती बेले बेले लोक मैंने भावती इस्कन जो साधु बा सन्यासी से बहुत आराम केते फूलमाला केते सम्मान केते तांको कौन दिया जाउथो किंतु सन्यासी जानछन ना पेट पूरा खाई भी परिबन आ सन्यासी 3 घंटा अधिका सोईवार अधिकार भी नहीं तक सन्यासी यदि हाकुड़ी मारदेला ता धर्म नष्ट हो पतन आरूढ़ पतन हो तार से पेट पूरा खाई भी परिबन थरे आमे हमर बिल्लो मंगल प्रभु जने भुवनेश्वर भक्त अछन से हमको नहीं कि जाइथिले माने बॉम्बे सेपटे महाराष्ट्र ये करिया पे आमे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराजंकर आश्रम रे जने बहुत सुंदर सन्यासी हमर अछंती इस्कन महाराजंक शिष्य तांको मिसिया पे जाइथिलु हमर अमृतेश प्रभु हम सहित थिले से समय आमे तो तांको रूम भीतर को पसिलु तांको रूम रे केवल गोटे चटे या गोटे अटैच एति हूँ संपत्ति से श्रीपाद अक्षयरी प्रभु मत कहले प्रभु देखु लोक मैंने कौन भावुं सन्यासी मान जीवन के अधिका गोटे धोती भी एक्सट्रा रखी पारिबनी तुम्हें जगह तो नथियो रखियो कोडी रूम रे सिना जगह तले संग्रह परिग्रह करिवो तुम्हें तेणु ब्रह्मचारी जीवन टा केवल तपस्यार जीवन आ ब्रह्मचारी शरीर टा केमती हवा दरकार तपमय शरीर हवा दरकार सेतलागी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो ब्रह्मचारी माने मोटा होतले तांको जम्मा भल पाउनथला मु वर्तमान ए कथा कहूची मु वर्तमान ए सिद्धांत रे माने मु निजे वर्तमान बहुत मोटा हे थरे मु वृंदावन रे परिक्रमा करथली गिरिराज को मो पछरे मते जे गाइड करंती आ तांको सहित बहुत वरिष्ठ वैष्णव माने जाउथली तेणु सी कहले ये शांतिपनी प्रभु जे जाउछन आगे चिन्हित होनी तापर से मते जेते परिक्रमा सरला पर डाकी कहले ये जो शरीर जेंती हेलानी या भजन उपयोगी शरीर ए 2 दिन तले हमर जने डॉक्टर आस्ते ब्लड प्रेशर टेस्ट करिया गोटे वेट मशीन आस मु 9 किलो अधिका है तेणु मंदिर जे टेम्पल कमांडर से कहले मंदिर प्रसाद शरीर है बाहर बोधे किसी पड़ू मुझे हाँ बाहर पड़ी आ वर्तमान चातुर्मासी आसीगला वर्तमान तपस्यार समय तेणु साधुर जीवन में गोटे स्थिति रहा दरकार जे ये भाविन मु निज कथा कहीकि ये कर आम निज निज भितर गोटे लक्ष्मण रेखा रखा दरकार मुझे भी सीमा रेखार बाहर को जीविनी मत जिते कष्ट हो मत किए गाड़ी करुच्ची मोर गुरुजन मु एई सीमा रेखा बाहर को केबे जीविनी जदि मु अतिक्रम करि जाए ताले मोर अंतिम स्थितिटा बहुत भयंकर हो बेले बेले किछि भक्त माने भावंती जे मु तांको मुंह तोड़ जवाब देछि हाँ सी मते एमती कहउतले मु तांको एमती उत्तर देली कि मन रखिबे आपनकर जे मुंह तोड़ जवाब आपनक जीवनर वार्धक्यर आखिर लुह साजी तेणु एठी उद्देश्य होछि कि गृहस्थ कि ब्रह्मचारी उभय को कौन करिया दरकार तपस्या करिया दरकार तपस्या कले व्यक्ति कौन हबो ना से तार जीवन रे आत्यंतिक जहाँ कहते ये से बुझी पारिबो आउ ब्रह्माजी भगवान कृष्ण द्वारा दीक्षा प्राप्त हेले जहाँकि ब्रह्माजी निजे ब्रह्म संहितार स्वीकार करछंती कृष्ण मंत्र रे ब्रह्माजी दीक्षित हेतले आमे से ब्रह्मांक परंपरा रे आसुचे एक विराट ब्रह्मांड निर्माण करिया पूर्व से जड़े भक्त हेतले तेणु आमे ब्रह्माजी जेमती बहुत सुंदर सृष्टि करछंती
तेणु आम एक सुंदर हृदय सृष्टि करवा, जो हृदय को भगवान को अर्पण करवा, भगवान से सुंदर निर्मल हृदय रे विराजमान करिए। वर्तमान जन्माष्टमी आगत प्राय, प्रतिदिन जड़े साधक, भाग्यवान साधक से निजको जन्माष्टमी पर प्रस्तुत करिया दरकार। आ जदि पूर्व प्रस्तुति न हुए ताले उत्सव दिन केवल कौन हम प्रपंच हो, किए भल धोती पिंची, किए भल लुगा पिंची, किए कलेक्शन कला, कहा ना डिक्लेयर हैला, कहा ना डिक्लेयर हैलानी, किए क्लास देला, यही सब धंदारे तार जीवन पड़े। किंतु जी प्रस्तुति है निजको तार सेठन जन्माष्टमी प्रत्येक मुहूर्त प्रार्थनामय हो भगवान को चरण में। तेणु आमर जो माने बहुत गंभीर भक्त से माने भगवान को सेदिन स्वागत करती। बंगला रे कहा जाए, एस 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 प्रभु आमार हृदय मंदिर। हे प्रभु, जने भक्त सेदिन जन्माष्टमी दिन भगवान को डाके, हे प्रभु मो हृदय मंदिर को आज आपण को आसन, आपण आसन। आ जदि हृदय मंदिर टाको परिष्कार परिच्छन्न न करा जाय थाए, प्रस्तुति न करा जाय थाए, न सजा जाय थाए, केमि भगवान को डाकी बसेवा। तेणु ब्रह्मा जी प्रथमे कौन कर तपस्या कर। तेणु जन्माष्टमी पूर्व बलदेव जयंती आसे। कहीं ना गुरु तत्व आसला माने भगवान तापरे गुरु ही भगवान को बसई पारे। तेणु एठी प्रभुपाद लिखुचंदी जे ब्रह्मांक ठारु नारद, नारदंक ठारु व्यास, व्यासंक ठारु माध्वाचार्य, माध्वाचार्यंक ठारु माधवेंद्र पुरी, माधवेंद्र पुरींक ठारु ईश्वर पुरी, ईश्वर पुरींक ठारु श्री चैतन्य महाप्रभु एवं क्रमशः आमर गुरुदेव श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती पर्यंत ए परंपरा चली आसी। जो माने शिष्य परंपरा रे दीक्षित होउचंती से माने एकाफल सृजन शक्ति लाभ करिया को समर्थ अटंदे। निष्काम भगवत भक्तंकर एकमात्र आश्रय होची दिव्य मंत्र जप करिवा। एई तपस्या आचरण कले भक्त ब्रह्माजी भली समस्त सिद्धि लाभ करि परिबो। तेणु आमर ये जो आध्यात्मिक जीवन श्री हरिनाम जप उपरे पर्यवेसित, जी जेते गंभीर होइकी भगवान कर नाम को आश्रय करिवे सेमानकर सेते सुफल लाभ करि परिबे। निशम्य तद वक्त्र दिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यद् अपश्यमानः स्वधिष्ण्यमास्ताय विमृश्य तद्दितः सपस्युपादिष्ट इवाधते दधे मनः। हरिहर प्रभु आपण अनुवाद पढ़ंतु। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 7 अनुवाद। जेतेबेले से शब्द सुनिले सेतेबेले से चारिआड को चाहि वक्ता किए बोली जानिବାକୁ चेष्टा कले, किंतु निज व्यतीत अन्य काहाको न पाई से भाविले बरं निज पद्मासन रे स्थिर भाव में बसी उपदेश अनुजाई तपस्चरण करने प्रति ध्यान देवा विज्ञतार कार्य हेबो। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर कथा। बेले बेले आम माने बहुत खंडन मंडन चिंतन करू, किंतु ब्रह्मा जी एटी निजे तांकर जीवन रे आचरण माध्यम रे देखौचंती जे जणे ए जो आध्यात्मिक जीवन को आछि से केमती कालातीपात करवा दरकार। तेणु ब्रह्मा जी जेतेबेले काहाको देखि पारलेनी सेतेबेले से कौन कले ना पद्मासन रे बसी पड़ले एवं से तपस्या करने पे ध्यान देले। सेतलागी प्रथमे मैं आगुरी मध्य बहुत थर आपण मान कहिछि जे जणे प्रथमे आसन जय करिया दरकार। निर्दिष्ट गोटे समय निर्दिष्ट गोटे आसन रखिया दरकार। विशेष कर जो माने ब्रह्मचारी सेमानक पई एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। ब्रह्मचारी जीवन में 5टा जिनस बहुत मुख्य। जदि जणे एटा को न करे से केबे हेले जणे आदर्श मानदंड उपर निज जीवन को रखि परिबनि। ता भितर प्रथम होछि निजर आसन। हमर प्राचीन समय रे विरक्त समाज रे कहा जाए जे 2टा जिनस बड़ा पवित्र रखिया दरकार। एवं एई कथा मोर मन को भी कहनी भक्ति विनोद ठाकुर तांकर भजन रहस्य ग्रंथ रे भी सब जिनस को उल्लेख करछन। सेटा होछि गोटे आसन। आसन बहुत सरल, आपण माने भी प्रत्येक भक्त रखिया दरकार। मु प्रथम दिन भक्ति वैभव कोर्स रा आरंभ रे भी एई कथा को निवेदन करथिली जे जणे कुशासन रखि परिवे। कुशासन 50 रु 55 टंका रे प्राप्त होची बा 60 टंका रे भी मिलुची। कुशासन रो 2टा भेराइटी अछि, जोटा बहुत रियल कुश सेटा भारी कष्ट दब, बसी हबनी, वयस्क लोक माने बसी परिबेनी। किंतु आ गोटे रिफाइन कुशासन आछी सेटा 70 रु 75 टंका पडुची। जे कोनोसी पूजा सामग्री दुकान रे बा मार्केट बिल्डिंग रे भुवनेश्वर रे हमर प्राप्त होई पारिबे। नचेत कंबलासन गोटे मोटा भली आसन आछी, प्रति इस्कन केंद्र रे ताहा बुक स्टॉल रे मध्य प्राप्त होची, इस्कन मंदिर मानक रे व्यवहार हुए। से आसनटा पर पवित्र कारण सेटा
रेशम ये तैयारी होता है ताकू कुशासन ऊपर जदि आपन कष्ट होची कुशासन रे बसिया पई ताल ताकू भी पकई की बसी पारिबे बा जो मन को बहुत वयस्क व्यक्तित्व माने एठी अछंती क्लास रे जो मन को बयस हो गेलानी से काठर चेयर रे बसिया दरकार काठ भी अपवित्रता दोष लागेनी बा आपण सर्वोपरि जेकोसी आसन रे गोटी आसन रे निर्दिष्ट समय फिक्स करिया दरकार जे मुक्ति समय भगवान को देवी आउ एटा केबे भी उठिबे प्रतिदिन चर्चा रे एटा को रखिया दरकार प्रभुपाद भावार्थ रे वर्णना करचंती भगवान कर एक शुद्ध भक्त जरिया रे व्यक्ति से सुजोग भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम रा दिया जाइतबा ज्ञान उपदेश रे लाभ करि परिबो कौन लाभ करि परिबो ना शक्ति माने सृष्टि करियो सृष्टि माने कोन जे प्रचार करछे बा हम निजे निजको सजाड़िया को चेष्टा करछे निजर दोष ऊपर विजय हासिल करिया को चाहछे ता गुरुंक माध्यम रे जने प्राप्त होई परिबो आज समाज रे आमे कौन करछे समस्त जहा को प्रीचिंग करछे आमे निज सहित जोड़िया को चेष्टा करछे से मते मानु से मते प्रणाम करू जहा गिफ्ट आउछे मते दो या द्वारा कौन हबो बहुत भयंकर परिस्थिति सृष्टि हो आमे जहा को आणुचे आमे कौन करिया दरकार ताको भगवान को सहित जोड़िया दरकार शुद्ध भक्तों सहित जोड़िया दरकार आज समय जो काउंसलिंग सिस्टम अच्छी केते मात्रा रे बहुत भयंकर बेले बेले जगह परिस्थिति सृष्टि करुच्ची कारण आमे समस्ते आत्म प्रशंसार इते जहा कोंती माने ये रे हे जाउछे काहा को आक्षेप करी मु कोने एटा होछि वास्तव जदि एटा हम न करिवा हम निजे ही हम निज आखि आगे भयंकर परिस्थिति को देखिवा प्रभुपाद लिखुछन्ती जनकु सब बेले कोन करिया दरकार जने आध्यात्मिक गुरुंक सहित जने सबु बेले संपर्क रे रहबा दरकार सबु बेले आपण जाने कि माने खुशी हेबे आगुरु भी थरे कहितली प्रत्येक भक्त परम पूज्य भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराजंकर गोटे ग्रंथ अछि द स्पिरिचुअल कनेक्शन नेट रे मध्ये अछि इंग्लिश रे भी अछि हिंदी ग्रंथ अवेलेबल हेलानी कि नाही जानि किंतु आपण देखि परियो से ग्रंथटी को जने निश्चित अवलोकन करिया दरकार जदि निज आध्यात्मिक गुरुंक सहित जने बहुत गभीर संबंध रखिया को चाहूँ आजिकल सब काउंसलिंग सिस्टम हेलानी काउंसलर मान सहित माने संबंध रहउछि गुरुंक सहित किछि संपर्क ही नाही जन जने शिष्य तो एमती से गुरुंक सहित गुरु किए से जानि परना ये बहुत भयंकर परिस्थिति वर्तमान तेणु आमे सब बेले प्रयास करिया दरकार बेले बेले कहते जे भाषा प्रतिबंधक हुए किंतु मु आपण मानकु कहिबी हमर ई इस्कन बुर्लार जने भक्त थिले तांको नाम होछि श्रीपाद गौर मोहन प्रभु जे बे निकट रे अप्रकट लीला कले आपण जानि के आश्चर्य हेबे से पाठ भी पढ़ी ना आ से परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज शिष्य जहाँकर बहुत बड़ बड़ वैज्ञानिक बहुत विश्वर सबुठ विद्वत लोक माने तांकर शिष्य किंतु तांकर गौर मोहन प्रभुकर गुरु महाराज सहित बहुत घनिष्ठ संबंध थिला एवं गुरु महाराज जो अप्रकट होते से दिन से गौर मोहन प्रभु सहित कथा एवं तांको कहितले एटा तुमर घर तेणु से गुरुंकर आज्ञा मानिकी आम आखि आगे आम देखिलु किभଳି ए जगतरु से माने कौन हेले ना किभଳି तांकर गौरवमय मृत्यु होला पूरा प्रभुपादଙ୍କ भଳି जीवन शेष दिन भी भगवान दर्शन करले मोर जड़े गुरु भाई कहले से सब दिन मंदिर माने सब आरती रे प्रेजेंट सब आरती से गाइले हमर हरे कृष्ण प्रभु जी डिस्कनेक्ट हो गले कहार मन अच्छी कि पांचटा इंपोर्टेंट जिनस कौन गोटे ब्रह्मचर्य करिया कथा प्रभु जी कहते आरंभ कहते क्लास पांचटा तो ये दीटा तो कहले पांचटा तो प्रभु कहि नांदी हाँ गोटे कहले ना दीटा दीटा गोटे निर्दिष्ट समय गोटे निर्दिष्ट आसन दुईटा प्रभु आपण दुईटा कहले गोटे निर्दिष्ट आसन निर्दिष्ट समय कुशासन उपरे बसिबे आ निर्दिष्ट समय रे आपण जप करिवे कुशासन उपरे कहले केमति कुशासन आज्ञा निर्दिष्ट समय माने निर्दिष्ट समय रे जपटा केवल अन्य कार्य हाँ कुशासन उपरे बसिबे जपटा करिवे तो आमे तो प्राय मंदिर रे बसु से आसन आपण हाथ रे बुडी की नेकी जाकी पकी बस परिवे देह बोध पतला सरवाटे आश्रम मंदिर रे मिलुची जो आसन जो मिलुची वृंदावन आश्रम जोटा तादरे मध्ये बस परिवे
ସେଟା ତ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆସିଲେଣି। ତ ମୋର କହିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ମୋର ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଏଭଳି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ନ ଭୂତ ନ ଭବିଷ୍ୟତ, ଯୋଉଠି ଭାଷାର ତାରତମ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଏତେ ଇଏ କରିଥିଲେ, ଶେଷ ଦିନ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନ ଲୋକର ଯେତେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ପାଇଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରଣ ରାଜ ନେଲେ ମସ୍ତକରେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଉପାଖ୍ୟାନ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କର ଯାହା କୁହନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସୁଖ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଜଗତରୁ ସେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ତ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରତିଦିନ ଯିଏ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କର ଆପଣ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେବା କରିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ହଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଧାଡି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା ପାଖରେ ଭଗବାନ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟ କରିଥାଏ, ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହବ କୃପା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଶ୍ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯାଉଛେ, ତେଣୁ ଶ୍ଲୋକର କ୍ରମ ଗୁଡିକୁ हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु सुबिला। ଶୁଣିପାରୁଛି। ଶ୍ଲୋକର କ୍ରମ ଗୁଡିକୁ ବଡ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଆପଣ ନେବେ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 8, ଦିବ୍ୟಂ ସହସ୍ରାବ୍ଦଂ ମୋଘ ଦର୍ଶନ ଜିତା ନୀଳାତ୍ମା ବିଜିतो ଭକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଃ ଅତପ୍ୟତସ୍ମନ୍ ତପସ୍ତପୀୟାಂ ସ୍ତପତାಂ ସମାହିତଃ। ଅପୂର୍ବା ମାତାଜୀ ଆପଣ ଅନୁବାଦ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବେ? अनुवाद श्री ब्रह्मा जी 1000 दिव्य हरे वर्ष बा कृष्ण। देव वर्ष। अपूर्वा माताजी हाँ प्रभु जी मुझे कहूँ शुभुनी। श्री ब्रह्मा जी 1000 दिव्य वर्ष बा देव वर्ष तपस्या कले, से आकाश एक दिव्य धनु शुणिले एवं से याकू भगवान आदेश बोली ग्रहण कले। एहीपरि भाव से तांकर मन और इंद्रिय मान को संयत कले एवं से जो तपस्या कले ता जीव मान पक्षरे एक महान शिक्षा। एहीपरि भाव से समस्त तपस्वी मध्य महान बोली परिचित। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी मो कथा सुबिला तो? हाँ आपन कथा प्रभु प्रभु जी कथा कटि जाए। आज्ञा प्रभु जो कहबी आज्ञा। वीडियो ऑफ कर देबे, नहले वीडियो ऑन करले बैंडविड्थ पाउन। प्रभु माताजी आपण अनुवाद पढ़ी पढ़ो। पढ़ी सारे प्रभु जी, पढ़ी सारे पढ़ी सारे कंप्लीट भाव पढ़ी सारे प्रभु जी। शुभुनी नेटवर्क प्रोब्लेम जो पढ़ी सारे माताजी। आज्ञा आज्ञा। जी ब्रह्मचारी जो 5टा नियम टिके कहि। हरे कृष्ण। आज्ञा। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। आमे सुनि परछ आपन को। प्रभु जी बोधे शुणी माताजी पारना आपण बोधे पढ़ो। ना। पढ़ी सारे प्रभु जी, पढ़ी हाँ सारे सुनुची। पढ़ी सारे पूरा कम्प्लीटली। आउथरे पढ़ी कि प्रभु जी? हरे कृष्ण माताजी। प्रभु जी मु पढ़ी सारे आउथरे पढ़ी, जदि कहबे आउथरे पढ़ीदेवी। अच्छा ठीक अछि ठीक अछि। आज्ञा पढ़ी सारे प्रभु जी। ठीक अछि। तेणु आज्ञा एठी कुआ जाउची, आपण माने मते सुनी परछनी? हाँ शुणी पारुछु। हां पटी जाउथो। तेणु 1000 वर्ष तपस्या कले एवं से आकाश रे एक पुणी कटि गला। ब्रह्मा जी दिव्य 1000 वर्ष तपस्या कले, से आकाश रे एक दिव्य ध्वनि शुणिले एवं से यहाँ को भगवान कर आदेश बोली ग्रहण कले।
एहीपरि भाव रे तांकर मन और इंद्रिय मानकु संयत कले जो तपस्या कले ताहा जीव मानक पक्षरे एक महान शिक्षा एहीपरि भाव रे से समस्त तपस्वी मध्य महान बोली परिचित तेणु वास्तव रे जने ए जो शिष्यर कर्तव्य से कौन करिया दरकार ना गुरुंकर आदेश को अक्षरे अक्षरे पालन करिया पई से प्रयास करिया दरकार प्रार्थना करिया दरकार भगवान को पाखरे जे मु केमती मोर गुरुदेवंकर आदेश को पालन करि परिबी जीवन मृत्यु पूर्व आ यह होची समस्त सिद्धिर चाबिकाठी तेणु ये तपस्या कौन कला ब्रह्मा जी को शक्तिशाली कला एवं से ब्रह्मांडर विधाता हेले तेणु जेहेतु तपस्या करिकी से शक्ति लाभ करथिले तेणु ब्रह्मा जी को सर्वोत्तम बोली कहा जाए। श्लोक नंबर 9 तस्मै श्लोकम भगवान सभाजितः संदर्शयामासं परम न जत्परम व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम स्वदृष्टवद्भिर पुरुषैरभिष्टुतम। श्यामा सखी माता जी आपण अनुवाद पढ़ंतु। हरे कृष्ण श्यामा सखी माता जी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। एहीपरि भावरे भगवान श्री ब्रह्मा जी तपस्या संतुष्ट होई तांकर स्वधाम वैकुंठ लोक अन्य लोक मानक ठारू ऊर्ध्वरे थिबा लोक प्रदर्शन कराइले। एही दिव्य भगवत धाम आत्मानुभूत लाभ करिथिबा पुरुष मानक द्वारा आराधित हुए अर्थात माइक स्थिति जनित समस्त प्रकार क्लेश और भयरु मुक्त आत्मानुभूति संपन्न व्यक्तिगण से दिव्य धामर आराधना करती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी सुनिले प्रभु जी पुणी कटि गेले नेटवर्क कटि होजी प्रभु जी तबे वर्तमान दर्शन करुछे भगवान को माने जागतिक प्लेस माइक प्रेशर माने भयरु मुक्त से माने भगवान आराधना करती वास्तव में आध्यात्मिक जीवन बहुत आनंदमय एवं अंतिमय माने वैकुंठ को सुनी पारछोंदी नाइ प्रभु सुनी पार नथले एले बर्तमान सुबिला क्लियर बे। हाँ से दुर्भाग्यवशत ए वर्षा जगु नेट बहुत प्रॉब्लम रहउची एठी हम मोबाइल टा भी खराब हे जाईची मु आज नुआ मोबाइल जिबे क्लास पर केनिया पे आशा करी जे नेक्स्ट क्लास टू किछि असुविधा हबन एवं ए काली भी जियो हमर क्लास अछि प्रभु जी हे परियो दा प्रभु जी काली करि परियो दा नाही परियो ने काली क्लास काली बहुत गुरुत्वपूर्ण क्लास भी चतुश्लोकी भागवत काली हम चर्चा करियो तेणु यही जो श्लोक रे श्लोक नंबर 9 रे ए पॉइंट को आपण माने नोट करिया दरकार बहुत गुरुत्वपूर्ण भागवत पई भगवान एठी महावैकुंठ को ब्रह्मा जी को दर्शन करेले विश्वनाथ ठाकुर भाव अनुसार स्वलोकम शब्दर अर्थ रे विश्वनाथ लिखुचंती जे महावैकुंठ को भगवान दर्शन करेले जहा कि एठी कहउचंती यह समस्त प्रकार शोकरु अविद्यारु मुक्त एठी कहउचंती अविद्या स्मित राग द्वेन अभिछंदेसु अर्थात अहंकार आसक्ति घृणा भाव जहा ई जगत रे सब अछि ताहा दिव्य वैकुंठ रे देखा जाय नाही एवं यह ई कथा जोग सूत्रर द्वितीय अध्यायर तृतीय श्लोक रे वर्णना करा जायछि विश्वनाथ चक्र ठाकुर सेउठु आनिकी प्रमाण दउछन तेणु सेठी मध्य विमोह नाही किछि कौन प्रकार संदेह नाही एवं भगवान को जदि सेठी न देखि पारंती भी से माने कौन करन दुखित होंती नाही सेठी कौन सी प्रकार अपराधर भी भय नाही स्व साध्वसम शब्द रे जेंति आमे सेवा करछे आम मन रे बहुत भय थाए
तेणु इठू जो माने पूरा क्लियर सर्टिफिकेट नहीं कि जीवे से माने वैकुंठ रे पसिबे सेठी आ भूल हवार चांस नाही। तेणु आ से धाम कि भली ना इंद्र अन्यान्य जाको महान व्यक्तित्व मानक द्वारा मध्य जहा अभिलषित प्रशंसनीय विबुधादौ श्लोकर शब्द को देखिए एवं अनुपम आज एते डिस्टर्बेंस प्रति 2 मिनिट रे पुणी घटिला कहउचंदी तापरे किंतु वैकुंठ रे गोटे बहुत सुंदर सुजोग होची आमे स्वचक्षुरे भगवान को सर्वदा देखि परिबा किंतु देवता मानक पक्षरे मध्य ए सुजोग लाभ हेई पारे नै जदि जने वैकुंठ को जाए से भगवान को अध्यक्ष भगवान को सब बेले कौन हम देखि पारे एठी अध्यक्ष शब्द मु काहे लखेली ना भगवान इंद्रियातीत हमर इंद्रिय माने भगवान को धरी रखी पारंते नै तेणु एठी जीव गोसाई पाद तांकर टीकार लिखुचंती सभाजित भगवान ब्रह्माजी ऊपर बहुत खुशी कहीं ब्रह्माजी तांको उपासना करथिले तांको तपस्या करथिले एवं तांको संतुष्ट करथिले तेणु ब्रह्माजी भगवान कर बहुत प्रिय सेथि पई ब्रह्माजी कौन हेतला ना नाभि कमल रे भगवान को से कौन प्रकट हेतिले एवं भगवान तांको भगवान को ब्रह्माजी कौन करथिले तांको प्रीति रे बस करथिले उपासना रे वशीभूत कर देथिले सेथि पई भगवान प्रसन्न हेई तांको वैकुंठ को दर्शन कराइले जहा होची दिव्य जगत एवं याठु ऊर्ध्व बा याठु श्रेष्ठ आ कोनोसी वस्तु नाही परम न यत परमम उपनिषद रे कहा जाउची जहांक ठारू आ कोनोसी श्रेष्ठ वस्तु नाही गर्गी जेतले प्रश्न करचंती याज्ञवल्क तार उत्तर दउछन ए प्रसंग गुड़ी को बहुत गुरुत्वपूर्ण बड़ सावधान है शुणिबे एवं या नोट करिवे जहा फल रे भविष्य रे यह आपणकर विश्वास व आस्थार वृद्धि रे बहुत सहायक हो। गार्गींकर प्रश्न रे याज्ञवल्क उत्तर दउचंती जे एई अंतरिक्षर परपार रे आ प्रजापति लोक भितरे कौन कौन सब रही तेणु सेठी याज्ञवल्क ब्रह्मलोकर कथा कहिसंती तेणु एई समय रे किभली भाव रे ब्रह्माजींकर ब्रह्माजी को भगवान कौन करथिले ना तांकर वैकुंठ देखैथिले याज्ञवल्क गार्गी को से उपाख्यान कहिछन जहा जीव गोस्वामी तांकर ए श्लोकर भाव रे प्रस्तुत करछंती जे भगवान को व्यतीत श्रेष्ठ आ केही नाहांती ब्रह्माजी ए कथा व्यक्त करछन नारदन को आगे रे याज्ञवल्क ए कथा को व्यक्त करछन गार्गी को निकट रे तेणु जदि एटी कहउचंती जे बेले बेले देखा जाए जे जीव कौन हुए मायार वशीभूत हेकी से कौन करे ये सब जिनस को बुझी पारे नहीं तेणु एठी भगवान तत्व को भगवान ब्रह्माजी प्रतिपादन करचंती तापरे माया शक्ति व स्वरूप शक्ति विषय रे भगवान ब्रह्माजी परे कहिबे इठी वर्णना करा जाउची जे काहे कि से समस्तंक ठारू श्रेष्ठ ब्रह्माजी कहउचंती जे भगवान श्रेष्ठ काहे बा वैकुंठ काहे श्रेष्ठ ना प्रथमे वैकुंठर 5टी लक्षण कहउचंती जे ताहा होची अविद्यार मुक्त द्वितीय अविद्या अर्थात सफरिंग्स बा नाना प्रकार दुख तापरे होची अस्मिता आपण माने पॉइंट गुड को लिखिया दरकार प्रथमे होची अविद्या द्वितीय रे होची अस्मिता अस्मिता शब्दर अर्थात कोन इग्नोरेंस अज्ञानता वैकुंठ अविद्यार मुक्त अस्मितार मुक्त तापरे तृतीय पॉइंट होची कोन ना रागर मुक्त फॉल्स आइडेंटिटी मिथ्या परिचय अस्मितार मुक्त रागर मुक्त तापरे होची द्वेष मु भूल कहली
आपण माने मते कही कहलेनी प्रथमे होची क्लेश जहार अर्थात होची सफरिंग द्वितीय रे होची आउ थरे आपण नोट करिया दरकार प्रथम पॉइंट होची क्लेश जहार अर्थ होची सफरिंग बा दुख द्वितीय रे होची अविद्या जहार अर्थ होची अज्ञानता प्रथमे होची क्लेश द्वितीय रे होची अविद्या अज्ञानता जार अर्थ तृतीय रे होची अस्मिता फॉल्स आइडेंटिटी मिथ्या परिचय अस्मिता चतुर्थ रे होची राग अट्रैक्शन बा आकर्षण पंचम रे होची द्वेष घृणा करिवा हैट्रेड आ छरे होची अभिनिवेश एब्जर्शन बा बुड़ी रहिबा आउ थरे कहूची वैकुंठ पांचटी दोषरु मुक्त प्रथमे होची क्लेश द्वितीय रे होची अविद्या तृतीय रे होची अस्मिता चतुर्थ रे होची राग पंचम रे होची द्वेष एवं षष्ठ रे होची अभिनिवेश संकर्षण बलराम प्रभु आपण पांचटा पॉइंट आउ थरे कहली हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम वैकुंठ पांचटी दोषरु मुक्त से प्रथम है क्लेश क्लेश अर्थात दुख बा सफरिंग आउ से अविद्यार मुक्त अविद्या माने अज्ञानता बा इग्नोरेंस मुक्त अस्मिता अर्थात फॉल्स आइडेंटिटी मिथ्या परिचय मुक्त राग मुक्त चतुर्थ राग मुक्त अर्थात आकर्षण बा अट्रैक्शन द्वेष है माने घृणार मुक्त दोष मुक्त और अभिनिवेश अभिनिवेश अर्थात ऑब्जर्वेशन बा बुड़ी रहइबा तेनु आपण माने एठु केते उडी श्लोक रे विशेष जीव गोस्वामी कर मु पॉइंट देबी जहा आपनकर श्रीमद् भागवतम को बुझिबारे बहुत सहाय्य करियो बहुत गुडी संदेह रु आपण मुक्त हे जिवे ए नवम अध्याय रे मु तो आशा करथि बहुत शीघ्र सारिबी किंतु दुर्भाग्यवश मोर गाड़ी बहुत स्लो एवं ता भितरे भी टेक्नोलॉजी एते समस्या करछि प्रति 2 मिनिट रे कटि जाउछि तेणु आशा करछि जे आपण माने मो सहित धैर्यर सहित भागवत को बुझिया पई आपनकर आज तपस्या तेणु तापरे कहउचंती जे वैकुंठ कोन ना एटा विमोहरु मुक्त एथिरे भय भी नाही तापरे कहउचंती जे सेथि पई याको कोन करंती ना महत व्यक्तित्व माने याको प्रशंसा करंती आ याको प्राप्तिर अभिलाष करंती तेणु इठी कोन करछंती ना ब्रह्मा जी देखुचंती भगवान को निज चक्षु सामना रे भगवान कर धाम को देखुचंती एवं जहा कि भगवान ए धाम भितरे रुहंती तेणु ब्रह्मा जी प्रथमे कौन कले ना तांकर सम्मान प्रदर्शन कले से आज्ञा मागिले एवं से कौन करछंती प्रणाम करछंती तेणु शिष्ट परंपरार नियम अनुसार आमे जते बेले एक होस्ट चले की कारण माइक ऑन अछि अपन म्यूट करबे तेणु शिष्ट परंपरा रे मंदिर रे पसिबा पूर्वरु आपण नॉक करके मंदिर प्रवेश करिया दरकार आपण केतेबेले परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज को देखिबे महाराज श्री आम सहित 2 दिन मु महाराज श्री को सहित रहियार सुयोग पाइथि महाराज श्री ए रूल्स और रेगुलेशन गुडा को पूरा एक्यूरेटली फॉलो करन केमती मंदिर रे प्रवेश करिया दरकार प्रथमे कौन करिया दरकार तापरे केमती प्रणाम करिया दरकार प्रणाम रे भी कहा को प्रणाम करिया दरकार केमिति करिया दरकार बहुत सुंदर हरे आ प्रथम तो शिष्ट परंपरा अनुसार कबाट को नॉक करिया दरकार हमर इस्कन रे कहूची बाहर मंदिर रे सेतले घंटी थाए आ घंटी कौन करे भगवान को सूचना दिए जने कि आगंतुक आपणकर आलय भितरे आपणक गृह भितरे प्रवेश करछ किना आमे कोन करछ सीधा सड़क मंदिर पस जाउछे तेणु मंदिर रे प्रस्थान प्रसिकी बेले बेले बहुत भक्त माने विभिन्न तुलसी को प्रणाम करंती बा जहा तो प्रथमे जाई श्री गुरु को प्रणाम करिया दरकार
बा कई जाइए डायरेक्ट श्रील प्रभुपाद को भी प्रणाम करती। इस्कन सिनियर तो प्राय सबुटी प्रभुपाद था, किंतु जमती आम भुवनेश्वर मंदिर अच्छी अलग कौन मंदिर रे यदि जो मंदिर रे यदि सेठी गुरुंकर फोटो रही जमती आप सीधा मायापुर को जाऊँगी यदि सेठी परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज फोटो अच्छी तो प्रथमे शिष्ट परंपरा होची जाइए सेठी आग प्रणाम करे दरकार तापर श्री प्रभुपाद को प्रणाम करे दरकार एवं तापरे श्री जय प्रणाम करे भगवान को प्रणाम करे किंतु प्रथमे होते श्री गुरु निजर आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम करे दरकार। तेणु वैकुंठ को जहाँ कहती भगवान धाम को वैकुंठ कहा जाए एवं वैकुंठ माने आकर्षण एते अधिक जे महत व्यक्तित्व माने मध्य को प्राप्तिर अभिलाष रखती। श्लोक नंबर 10 प्रवर्तते जत्र रजस्तमोस्तयोः सत्वं च मिश्रं च न च काल विक्रम न जत्र माया किमुता परे हरे अनुव्रता जत्र सुरासुरार्चिताः। आर्तबंधु प्रभु अनुवाद पढ़ंतु। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु। अनुवाद भगवान स्वधामरे भूत प्रकृतिर रज और तम गुण न थाए एपरिक भूत प्रकृतिर सत्वगुणर प्रभाव मध्य न थाए सेठारे कालर प्रभाव मध्य न थाए एपरि स्थले माया शक्ति कथा कौन कहवा ताहा सेठारे कदापि प्रवेश करि परिबो नाही। किछि बाछ विचार न करी भक्त रूपरे उभय सुर और असुर गण भगवान आराधना करिथांती। हरे कृष्ण। तो आम माने वर्तमान वैकुंठर चर्चा करछे। जन्माष्टमी आगत प्राय प्रत्येक विद्यार्थी कर्तव्य हवा दरकार। बेले बेले देखुची ऑनलाइन क्लास रे भी कैमेरा ऑन करिकी भक्त माने कथावार्ता होचंती का सहित समय बहुत गुरुत्वपूर्ण। वैकुंठर आम चर्चा करछे आउ एई कथा गुडी को सुनिकी बहुत चिंतन मनन करिया दरकार जे सतरे मो जीवन में कोन वैकुंठ केबे जीवी आ सेठी मु केमती चली केमती व्यवहार करी केमती रही। तेणु एठी कहउचंती जे भगवान धाम न थाए जेमती भगवत गीता रे भगवान गोटे ट्रेलर देथिले वर्तमान से ट्रेलर टा विस्तृत आकार भागवत रे वर्णना करछंती जोठी भगवत गीता रे कहले न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावकः। वर्तमान ब्रह्माजी कहउचंती ब्रह्माजी निजे देखिचन तांकर अनुभूति कहउचंती जोठी रज तम गुण न थाए कि भूत प्रकृतिर सत्व गुणर प्रभाव मध्य न थाए। आउ जदि एगुड़ा नाही ताले माया शक्तिर कार्य कौन सेठी माया शक्ति के प्रवेश करि परिबनी। तेणु एहा कौन करंती सुर एवं असुर उभय एहाकू आराधना करिथांती। थरे श्रील प्रभुपाद इंग्लैंड रे थिले एवं सेठी भक्त माने कहउतले जे प्रभुपाद जे जदि आमे तो बहुत पाप करछु हमको नरक जंत्रणा भी मिली पारे तेरे वैकुंठर आपण टे वर्णना करतो आपण वैकुंठ विषय सुनी के हमें आशा करी। प्रभुपाद कहले वर्तमान भी तुमे नरक रे अछि कहले नरक रे भी एते शीत हुएनी। इंग्लैंड रे थिली एते भयंकर शीत पड़ितला प्रभुपाद कहले नरक रे भी एते शीत हुएनी तुम माने वर्तमान जो नरक रे ही अछि। तेणु एठी 6टी गुण वर्णना करा जाउची वैकुंठर जहाँकि 3टी भौतिक गुण जहाँ जगत रे अच्छी सेटा वैकुंठ रे न थाए अर्थात सत्व रजतम गुणर प्रभाव वैकुंठ रे न थाए। तेणु आम माने तो सब सत्व रजतम गुण भितर अच्छे वैकुंठ केमती चिंतन करि परिबा। तेणु आउ कोन ताहा अभक्त मानक द्वारा जो माने अवैष्णव वैकुंठ को केबे हेले प्राप्त करि परिबे नाही। तेणु आध्यात्मिक जगत विषय बारंबार सुनिवा दरकार जहा फल रे आम माने कौन करि परिबा ना एई भौतिक जगत को माने कौन त्याग करिकी विरजार परपार रे जो थरे की विरजा नदी बहुत दिव्य नदी तार परपार रे जो त्रिपाद विभूति रही वैकुंठ आमे सेटा को जहा शाश्वत भाव सुंदर शाश्वत भाव सेठी जो माने थांती से माने यौवन प्राप्त करथांती देखिया को अपूर्व सुंदर और सर्वदा आनंद स्थिति रे रहंती सी शुद्ध सत्व स्थिति रे
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ବେଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମସ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଏହା କେବେ ବି ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ହୁଏ ତାହା ସତ୍ୟ, ଏବଂ ଯୋଉ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଆମେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ଶୋଇପଡୁ ବା ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ଏମାନଙ୍କର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଜୀବନରେ, ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଯିଏ ଜଣେ ଯାଆନ୍ତି ଭାଗବତର ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଫେରିକି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଇସ୍କନରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବିତର୍କ ବିଷୟ ରହିଛି ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାର ସମାଧାନ ହେଇନି, ତାହା ହଉଛି ଜୀବ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ଶ୍ରୀଲ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ୟାର ବହୁତ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ ଯେ ଜୀବ କେବେ ହେଲେ ବି ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆସିନି। ଏବଂ ସେ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏବଂ ଶ୍ରୀଲ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯିଏ କୁହେ ଯେ ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆସିଛି ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଜମା ବି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିନି। ତେଣୁ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ 18ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ଜୀବ ଯେ ଥରେ ଯିଏ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଏ ସେ କେବେ ଆଉ ଫେରି ଆସେନା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ କଥାରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଜଣେ କେଡେ ବି ଗରିବ ଲୋକ ହଉ ଯଦି ସେ ଥରେ ବିକଳିକର ରସଗୋଲା ଖାଇଲା ସେ ଗାଁରେ ମିଠା ଦୋକାନକୁ ଆଉ ଜମା ଚାହିଁନି। ସେ କହିବ ମୁଁ ଧାର କରିବି ବା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି କିନ୍ତୁ ବିକଳିକର ରସଗୋଲା ଖାଇବି। ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବ ସେ ଜଗତକୁ କାହିଁକି ଆସିବ? ଯେମିତି ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆପଣ ଆଫ୍ରିକାନ କି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଆଫ୍ରିକାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯେମିତି ହସୁଛେ ଦେବତା ମାନେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେମିତି ହସନ୍ତି। ଆମେ ତ ନିଜକୁ କି ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ବା ମିଷ୍ଟର ୱାର୍ଲଡ ମିଷ୍ଟର ୟୁନିଭର୍ସ ଭାବୁଛେ, ଦେବତା ମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ଦେଖିକି ହସନ୍ତି ଏତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେ, ସେଥିଲାଗି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପାଦ କେବେ ଲାଗେନି, ସେମାନେ ପାଦ ପକାନ୍ତିନି, ଆମକୁ ଏତେ ହୀନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛେ ଯେ କଣ ଆମେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ 6 ପ୍ରକାର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏଇ ଗୁଣକୁ ମାୟା ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେନି, ରଜତମରୁ ମୁକ୍ତ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ ରେ ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ମାନ ରହିଛି। ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅନୁବ୍ରତଃ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ବଦା ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯିବ ସେମାନେ ମାୟା ଆଉ ସମୟର ଅତୀତ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଜଣେ ବୈକୁଣ୍ଠର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରିବା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଆଜି ବି ଅଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେତିକି 24 ଘଣ୍ଟା ବହୁତ କମ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଡେଲି 64 ମାଳା ଜପ କରିବା, ଡେଲି ଯାହା କୁହନ୍ତି ଭାଗବତମ ଅନୁବାଦ କରିବା, ଡେଲି ମନ୍ଦିର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ରୋଷେଇ ଶିଖେଇବା, ପୂଜାରୀ ଶିଖେଇବା, ମନ୍ଦିର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ପ୍ରଚାର, ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ତା ଛଡା ମା ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ ତାକୁ ବି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ, କେମିତି ଧୋତି ପିନ୍ଧା ହବ ତାକୁ ବି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ। ଏଇ ସବୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା 24 ଘଣ୍ଟା ବହୁତ କମ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଲୋକ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବୈକୁଣ୍ଠର ଅଧିବାସୀ ହେବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠର ପରିବେଶ କେମିତି ହେଇଥିବ। ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରିବା, ଯେମିତି ଆମକୁ ଖରା ଦିନେ ବହୁତ ଖରା ମାନେ ବହୁତ ସହ୍ୟ କରି ହଉ, ବା ଶୀତ ଦିନେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏତେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଯେ ଚାରିଆଡ ମାନେ ଓଦା ଓଦା ଲାଗୁଛି, ମଶା ହଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠର ପରିବେଶ କେମିତି ହେଇଥିବ? ଅମୃତେଶ ପ୍ରଭୁଜୀ ସବୁବେଳେ ସେଠି ବସନ୍ତ ଋତୁ। ବସନ୍ତ ଋତୁ, ଆଚ୍ଛା। ବୈକୁଣ୍ଠର ମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ରୁମ କେମିତି ମିଳିବ ଅମୃତେଶ ପ୍ରଭୁ? ଏଠି ତ ଗୋଟେ ବେଡ ରୁ 2ଟା ବେଡ କୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଉ ବେଡ ରେ ବି ତ ଗଦି ପକେଇବାର ବି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଆପଣ କେମିତି ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି?
ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନିୟମିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଚାଲିଥିବ, ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଥକି ନଥାଏ ସେଇଠି। ମାନେ ସେଠି ନିଦ୍ରା ନାହିଁ ଶୟନ ତାହେଲେ। କରନ୍ତିନି, ନିଦ୍ରା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ମାନେ ଇସ୍କନରେ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଇସ୍କନରେ କିଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ପ୍ଲେଜର ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଗୋପୀ ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଗୋପୀ ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋପୀ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଦ୍ରା ଉପରେ ଜୟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋପୀ ହବା ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିଅନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକା ଶୋଇବାର ଆଦେଶ ହିଁ ନାହିଁ। 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଯିଏ 3 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛି, 3 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇକି ସୁଖୀ ହେଇପାରୁଛି, ସିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଦରକାର କଳିଯୁଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ ପ୍ରସାଦ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଖାଇ ବି ପାରିବନି ପେଟ ପୁରା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦିଅନ୍ତି ସେ କଣ କୁହନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ କମ ଖାଇବ। ଆଜିଠାରୁ ଦଣ୍ଡଟା ଦବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ କମ ଖାଇବ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ କମ ଶୋଇବ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା କମ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସଟା ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇଗଲୁ। ଆମେ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୋଉ ରୁମ ନବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ରୁମ ମିଳିଯାଉ। ମତେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାଇଁ କଣ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିବୁ, ଯାହା ତୁମେ ଖାଉଛ ତାହା କରିଦିଅ, କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହାର ନାହିଁ ସେମାନେ ସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ମୋ ସହିତ 3 ଜଣ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ସହିତ, ମାନେ ଏଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆସିଗଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଆମେ ଯାହାଠୁ ସେବା ନଉଛେ ତାକୁ ଆମର ଭଜନ ଦବାକୁ ପଡିବ। ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଡୋନେସନ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହାଠୁ କିଛି ନେଲେ ତା ପ୍ରତିଦାନ ଭଗବାନ ପାଖରେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ ସାବଧାନ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ବୈକୁଣ୍ଠର ଅଧିବାସୀ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଏଇ ସବୁ ସୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଛାଡିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଅଧିବାସୀ ହେଇପାରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବରେ ୟାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ହଉନାହିଁ। କେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବ ଯାଏ, ବୈକୁଣ୍ଠର ଶୋଭା କେମିତି, କାରଣ ଭାଗବତରେ ଏଟା ପରିପାଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଟା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଆହଉଛି। କାଲିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ କେମିତି ହେଇଥିବ। ଆମେ ଜୀବନରେ ତ କେବେ ଏଟା ଭାବିନଥାନ୍ତି। ଆଜି ଭାଗବତ କ୍ଲାସରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କଲେ ପଢୁଛେ ବୋଲି ମନକୁ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସୁଛି ଯେ ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବେଡ ଅଛି ବା ସେଠି ଡବଲ ବେଡ, ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମର ଡବଲ ବେଡ ଅଛି, ଏସି ରୁମ ଅଛି, ବମ୍ବେ ଡାଇଙ୍ଗ ର ଯାହା କୁହନ୍ତି ମାନେ ଚାଦର ମୁଁ ୟୁଜ କରୁଛି ବା ବେଡସିଟ୍ ୟୁଜ କରୁଛି ବା କମ୍ବଳ ଏଇ ବ୍ରାଣ୍ଡର କମ୍ବଳ ୟୁଜ କରୁଛି, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି। ତେଣୁ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡିଦେବା ଦରକାର, ଯେ ମନରେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପଶିବି ମୋର ସ୍ୱାଗତ କେମିତି ହବ ବା ମୁଁ ସେଠି କେମିତି ରହିବି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କେମିତି କରିବି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ବା ଟୀକାକାର ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଦିନଠୁ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ବ୍ରଜଗୋପୀ ମାନେ ଆଉ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ କହିଲେ? ଉଦ୍ଧବ। ଉଦ୍ଧବ ଉଦ୍ଧବ। କାରଣ ଉଦ୍ଧବ ମାନେ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ 4 ଜଣ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଯଦି ଶୃଙ୍ଗାର ସଜେଇ ଦିଆଯାଏ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯିବେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ହଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ହଉଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ହଉଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଏମାନେ ଅବିକଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ। ମହାରାଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଯଦି ପୁରୁଷ କରିଦିଆଯାଏ, ପୁରୁଷ ଭଳି ଆଜିକାଲି ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଝିଅ ମାନେ ଜିନ୍ସ ଫିନ୍ସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯଦି ପୁରୁଷର ବେଶ ନିଅନ୍ତି ସେ ଅବିକଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ତଦ୍ ମନସ୍କା ତଦ୍ ବାଚା ତଦ୍ ଚେଷ୍ଟିତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ, କାରଣ ଗୋପୀ ମାନେ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ସେଠିରେ କୌଣସି ମରଣ ଧର୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି ନିକୁଞ୍ଜ ଭିତରୁ। ତ ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ତେଣୁ ଗୋପୀ ମାନେ ଭାବିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଭଳି ଦେଖୁଥିଲା ଭଗବାନ ବି ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଭଳି ସଜେଇକି ପଠେଇଥିଲେ। ପାଖକୁ ଆସିକି ଗୋପୀ ମାନେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ନା ନା ଇଏ ଆମ ପ୍ରିୟତମ ହେଇପାରିବେନି,
आम प्रियतम का आखि बड़ चंचल, ये तो बड़ गंभीर आखि। तेणु पचारे किए तुमे, तो आम शुणिलु आम प्रियतम जड़े बहुत भल बंधु अच्छा से स्वर्गर पाठ पढ़ी आस। उद्धव कहले आज्ञा मुझे आपण पाखु आसी भगवान वार्ता नहीं चिठी दे। तेणु गोपी मैंने तो पाठ पढ़ी ना, उद्धव पचारे चिठी देखा, चिठी देखला से चिठी सब फाड़िया बसले। गोपी बुद्ध कहले रे बस बस, किसी बुद्धि तुमार नहीं, मु पढ़ुची तुम शुण। उद्धव जानी ना से गुरु को कहते तुम्हें पाठ पढ़ा शिखिन, प्रथम थर क्लास रे भूल रे कहीदेले, तापर जाइथिबे दिने पाई 6 मास रही, 6 मास रहिला परे भी खुशी हो पारलेनी उद्धव। जे स्वर्ग रु पढ़ी आसले से भगवान को जाई कहले, भगवान कांदुथिले आसला बेलको मथुरा। आ उद्धव तांको बुझेइकी आसले जे आपणको कांद मु बंद करिवि आ ब्रजवासी मानकर कांद बंद करी। आ उद्धव जब फेरिकी आसले 6 मास परे, उद्धव कांदी कांदी आसुचନ୍ତି, भगवान हसिकी स्वागत करछन। आ कहउछनी प्रभु मते आ मु मथुरा रे रही परिबिनी, मते कोन कर दियंतु, वृंदावन रे गुल्म कर दियंतु, घास कर दियंतु। तेणु मोर कहिबार उद्देश्य होची एई श्लोक मानकरे आमे वैकुंठ को चिंता करिया दरकार। आम माने वर्तमान ए जो पनीर पकोड़ा आउ ए जो आइसक्रीम ए सब जिंस खाइकी खुशी हो जाउची जगत में, किंतु सेठी एभले दिव्य जिंस जोटा रहिची जणे केबे कल्पना करि परिबे। एई जगत रु आमे जो जगत रे रहिचे 3-4 जण एभली माने भक्त अछंती जो माने सशरीर भगवान को धाम को जाइछे। ता भीतर प्रथमे होचନ୍ତି संत तुकाराम, द्वितीय रे होचନ୍ତି श्री घमंड देवाचार्य। आपण के ना सुनचेन तांकर घमंड देवाचार्य। इस सशरीर भगवान गोलोक वृंदावन में प्रवेश करिकी से फेरी आसते। आ सेठी भी देखिले जे भगवान कौन अच्छे नित्य वृंदावन में भगवान जो गोबर माँ मान जो घसी तैयारी करती किए देखिए हैंड रेज कले, ओडिशा रे प्राय समस्ते देखिए घसी जो तैयारी करती गाँ मानकरे। आ ताधरे सेठी भी ब्रजरे जिते घमंड देवाचार्य जाइथिले से देखिले जे सेठी भी घसी कौन है नित्य गोलोक रे भी घसी लगा है। से देखी बड़ा आश्चर्य हो गले माने नित्य गोलोक। तेणु भक्त मानक पई एटा छाड़ी दिया होची। सेतलगी श्री राधाकृष्ण सिंह गुरुदेव कहती जी प्रकृत रे भगवान को पाइया को चाहूँ ताको ग्राम्य सभ्यता देखिया दरकार, नले से बहुत कथा बुझी ही पारिबनी। थारे जने इस्कन विदेशी महाराज आ महाराज श्री सहित जाइथिले वृंदावन बुलिया पई। तेणु वृंदावन रे एई कार्तिक मास समय रे बहुत सोरिष लगा जाए। सोरिष फूल देखिए हलदिया 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 छोटिया छोटिया फूल। आमर कार्तिक मास समय राधा श्याम सुंदर को इस्कन रे मध्य से फूल रे श्रृंगार करा जाए, बहुत सुंदर देखा जाए। तो महाराज श्री से महाराज को कहले जे महाराज भगवान कृष्ण एई कलर एई फूल कलर सोरिष फूलर रंगर धोती पिंधन। सी महाराज पचारे सोरिष कौन, व्हाट इज मस्टर्ड, से पचारे महाराज श्री। तेणु महाराज श्री बुझेले जे सोरिष एक मसला जातीय जिनस जहाकू तरकारी रे आमे व्यवहार करू। तेणु जाई पुणी रोषे घर को नेले देखेले तापर से बुझी पारे। तेणु महाराज श्री कहले बेले बेले आमर ज्ञान अभाव आमे कौन करछे बहुत जिनस जानी पारुनु। तेणु आम माने सब बेले एठी वैकुंठ विषय शुणिबा को अभिलाष करिया दरकार। आगम पुराण रे एई दिव्य धामर कथा वर्णना करा जायछि। तेणु जो माने जो धामर आदि नहीं कि अंत नहीं, सृष्टिर प्रारंभ जार इतिहास के वर्णना करि परिबेन कि शेष करि परिबेन। तेणु सेठी जेहेतु रजतमर प्रभाव नाही, तेणु सेठी प्रलय रे भी कोन होछि माने से शब्द से कथा सेठी आसु नाही। भगवान सेठी सच्चिदानंदमय जन्म मृत्यु चक्र ह्रास वृद्धि अवस्थान प्राप्ति षड भौतिक परिवर्तन सेठारे नाही। तेणु चित जगत रे कौन हुए ना दिव्य आलोक प्रकाशित हुए। एवं जो माने वेद रे कहा जायछि भगवान सेठी होछि मुख्य एवं बाकी समस्ते तांकर अधीनत्व अनुगत्य स्वीकार करी तांको सेवा करी प्रसन्न करन। तेणु जो माने गोपी भाव आराधना करिया को इच्छा करती सेमानक प्रथम निद्रा आहार को ऊपर विजय हासिल करिया पड़ी। जने आध्यात्मिक जीवन रे अग्रगति करिछि सेटा केमति आमे बुझी परिबा ना से तार भोजन को देखिले आमे बुझी परिबा। पेटे खाउची
आउ से कहूची जे मु कोन गोपी भाव आराधना करछु एटा बुझिया पड़े पक्का ठक गोटे से भोजन रु ही बुझिया को पड़िबो जे तार आहार तार जहां स्थिति किभଳି रहिछि तेणु आमर षडगोस्वामी अष्टकम रे आमे गाउचे निद्रा आहार कादि विजित जो माने निद्रा आ भोजन उपरे विजय हासिल करथिले से माने ही वैकुंठर अधिकारी बोली बुझिया पड़िबो। श्लोक नंबर 11 श्यामावदातः शतपत्रलोचनः पिसङ्गवस्त्रः सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेकनिष्काभरणा सुवर्चसः। बहुत सुंदर श्लोक। संतुष्ट माधव प्रभु श्लोक अनुवाद पढ़न्तु। वैकुंठ लोकर अधिवासी मानकर शरीर वर्ण हेउछि आकाश नील वर्णर सेमानकर चक्षु पद्म पुष्प सदृश सेमानकर परिहित वसन पीतवर्णर एवं सेमानकर अंग सौष्ठव अत्यंत आकर्षणीय सेमाने समस्ते मणिमुक्त खचित गलाहार धारण करिथांती एवं सेथिरे एक अति सुंदर पदक शोभा पाउଥାଏ सेमाने समस्ते अति दीप्तवंत देखा जाती। तेणु वास्तव रे शारीरिक लक्षण भी रही जो माने एई जीवन रे भगवत प्राप्ति करती तांकर शारीरिक लक्षण भी रही तेणु एठी कहा जाउचंती जे से माने आकाश नील सदृश वैकुंठर परिकर माने एवं सेमानंकर पद्म पाखुड़ा परि नेत्र समस्ते पीत वस्त्र धारण करती एवं समस्ते अत्यंत प्रसन्न थांती समस्ते नवजौवन सदृश दिव्य आभूषण से माने धारण करती एवं सेमानंकर शरीर दिव्य तेज प्रकाशित हुए एवं सेमानंकर जीवन बड़ गौरवमय अटे जेहेतु सेमाने भगवानकर सेवारे नियुक्त थांती सेमानंकर दिव्य वैदुर्य आदि लिली आदि विभिन्न प्रकार रत्नर आभूषण परिधान करथांती जहाँकि भागवत संदर्भ रे श्री जीव गोस्वामी पाद वर्णना करछंती एवं जेहेतु से आभूषण जो पिंधिथांती से जो रत्न पिंधांती ताहार आभा एवं तांका शरीर आभा मिसी बेले बेले राक्तिम बेले बेले कौन हुए ना उज्जवल वर्णर आभा सृष्टि हुए तांका शरीर तेणु से जो वैकुंठ लोक अरे चारि प्रकार रंगर व्यक्तित्व देखा जाती जदि एठी मूल श्लोक रे केवल आकाश नील सदृश वर्णना करा जायछि किंतु जीव गोस्वामी पाद वर्णना करछंती जे वैकुंठर परिकर मानकर रंग चारि प्रकार प्रथमे होचंती केही कला वर्णर बा घन नील वर्णर केही रक्तिम वर्णर केही सबुज वर्णर एवं केही कौन करती श्वेत वर्णर एवं एटा कौन पाई कहा जाउछि चारिटा वर्णर ना वैकुंठर विविधता रही जेमती राम जींकर लोक अछि बलदेवंकर लोक अछि नृसिंहंकर लोक अछि भगवानकर लोक अछि तेणु से अनुसार विभिन्न पार्षद मानकर रंग मध्य भिन्न भिन्न हिताय एवं सेमानकर उपासना मध्य कौन थाए भिन्न भिन्न थाए आ सबु रंगर भक्त माने कौन करती जो माने भगवत स्वरूप पाती से माने कौन करती भगवान सहित एक दिव्य आउ बहुत तांकर जो सेवा तांकर संबंध भगवान सहित अति निबिड़ थाए आ एटा प्रमाण कोट दउछ लघु भागवतामृत रु 237 नंबर श्लोक रे ए कथा वर्णना करा जायछि से माने कर्ण रे कुंडल धारण करथांती मस्तक रे मुकुट धारण करती एवं से माने सबु समय रे दाकंदी वनमाला धारण करती एवं से माने अति उज्जवल वर्णर थांती जो माने वैकुंठर लोक से माने कौन करती सबु बेले भगवान कर प्रसादी माला परिधान करने को भल लगे से लगी अनेक भक्त माने निष्ठार सहित प्रत्येक दिन भगवान कर प्रसादी तुलसी प्रसादी माला धारण करिया दरकार हमर इस्कन ने परम पूज्य श्री जयप्रकाश महाराज से सबु बेले कोरोना समय रे भी से गोटे प्रसादी माला पिंधन तारे महाराज सिंह को प्रश्न करा जाता साधारण भाव में कष्ट लगे बेले बेले हमर धोती भी खराब हो जाए विशेष कर वर्षा दिन में फूलर रंग लगी जाए सार्ट पार्ट रे आमे काढ़ी दो प्रणाम करके फूलमाला काढ़ी दो महाराज श्री सबु समय बेकर गोटे फूलमाला पकईथे यदि को जगह को जाउछनी फूलमाला भी नहीं ताले प्लास्टिक बा सूतार माला करके भगवान को अर्पण करके बेकर धारण कर तेणु एठी कहा जाउछि जे
ତାଙ୍କର ରୂପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଭୂଷଣର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ୟାକୁ ଶୁଣିକି ଜଣେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବ ତେବେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଆମର କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ। ତେବେ ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ସେମାନେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର ହବା। ଏବେ ଶୁଣିଲେ 4ଟା ବର୍ଣ୍ଣର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଥାନ୍ତି, କିଏ କହିପାରିବେ ସେ 4ଟା ରଙ୍ଗ କଣ? हरे कृष्ण प्रभु। घन नील, रक्तिम, सबुज आ गोटे लिखिपारनी प्रभु। White, white. कला कला श्वेत धଳା ବର୍ଣ୍ଣ। ଘନ ନୀଳଟା କଳା ହିଁ। ତେବେ ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ସିଏ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ପଙ୍କଜ ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ନାଁଟା ବି ବୈକୁଣ୍ଠର ନାଁ। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभु प्रभु मते टे घन नील वाला पिंधिया ପାଇଁ हाँ घन नील। अच्छा हाँ अच्छा चरण सरोज प्रभु ରକ୍ତିମ ରକ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି? सूर्यदेवଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଚ୍ଛା ସିଏ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଅପୂର୍ବା ମାତାଜୀ ଆପଣ କୋଉ ରଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ? ପ୍ରଭୁଜୀ ମତେ ବି ସେଇ ଘନ ନୀଳ ରଙ୍ଗଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଭଗବାନଙ୍କର ରଙ୍ଗଟା। ହରିନାମ ଗୌର ପ୍ରଭୁ। ଅନୁରୋଧ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ମତେ ଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ନୀଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ନୁହଁ, ଧଳା ନୀଳ ମିଶ୍ରିତ। ଆକାଶ ନୀଳ, କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯାହା ହଉ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ପୀତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କଲେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ନିଜର ମନ ଗଢା କଥା କହୁନି। ଥରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଜୟପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୁରଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ସୁରଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ श्री श्री यमुना जी का पावन तट हो, श्री वृंदावन का धाम हो, श्री यमुना जी का पावन तट हो और मेरा सावरा सलोना सामने हो जब प्राण तन से निकले। महाराज श्री आगे जितेबाला यही भजन टाक परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज आगे प्रस्तुत करागला, महाराज श्री कहले ना ना। महाराज श्री कहले श्री नवद्वीप का धाम हो, गंगा जी का पावन तट हो और सती नंदन मेरे सामने हो जब प्राण तन से निकले। हाँ तेणु सब भक्त मानकर भिन्न भिन्न भाव अच्छी। देखो आम मैंने समस्ते संसार भितर निज निज सेवारे भक्ति जीवन में भी व्यस्त थे, केबे ए विषय भावी नथिले। एटलिस्ट ये श्लोक आमको आज जो बाध्य कला जे आमे आमर नित्य स्वरूप बा नित्य जो आमर भगवान को सहित संबंध रही भागवत माध्यम आज तो आम गोटे सेकेंड पे चिंता कले आओ श्रीधर स्वामी वर्णना करछंती जादृशी भावना जस्य सिद्धिम लभे तादृशी। जे जेभଳି भावना करे कालर समय अतिक्रमे से भली स्थिति को जाए। तेणु आपण माने आज चिंता करदेले किए नील कहले किए रक्त कहले आ चिंता करतु आपण से शरीर भी प्राप्त हो जिवे भगवान गुरु वैष्णवकर अहेतुकी कृपारु यहाँ ही भगवान को पाखरे प्रार्थना। प्रबाल वैद्युर्य मृणाल वर्चसः परिस्फुरत कुंडल मौली मालिनः। अमृतेश गौर प्रभु आपण अनुवाद पढ़ंतु। Some of them are effulgent like coral and diamonds in complexion and have garlands on their heads, blooming like lotus flowers, and some wear earrings. बेले बेले पुरुष लोक माने कान रे पिंधले बहुत खराब बोली कि समाज रे ग्रहण करा जाए। आमर आध्यात्मिक जीवन में माने विरक्त समाज रे कह जदी नोड़ी लगेला से गला 4-5 दिन, किंतु जदि आम सेठिकी जीवा दिव्य धाम को गले सेठी समस्ते कुंडल परिधान करन। आ किभली कुंडल परिधान ना रक्त प्रबाल तथा हीरा परी सेमानंकर अंग कांति, शिर रे पद्म पुष्प माल्य सुशोभित, अन्य केतक कर्णरे कुंडल धारण करछंती। तेणु जो माने कर शौक थाए किछि माने अलंकार आभूषण पुरुष लोकंकर भी बहुत माने इच्छा थाए यदि ब्रह्मचारी हला परे शासन भय से पिंधंतनी, किंतु वैकुंठ गला परे बहुत मूल्यवान अलंकार अपेक्षा करिकी रहिछि। आज भाबिया दरकार जे सेठी गले मु केमती निजको सजेबी, किंतु वास्तव कथा जानती ना कौन सेठी गला परे निजे सजेवा पे इच्छा हुएनी, भगवान को बेसी सजेया को
तार कौन हुए मन रे अभिलाष हुए कि जहा हो भगवान को सजेले कौन हुए प्रसाद रूप तो सब जिन फेरिकी आसो आम पाख तेणु ये हूँ भगवान भक्त मानकर वैकुंठर स्थिति भ्राजिष्णुभिर्जः परितो विराजते लसत् विमानावलिभिर्महात्मना विद्योतमानः प्रमुदत्त आद्युभिः स विद्युत् अभ्रावलिभिर्जथा नवः। संकर्षण बलराम प्रभु अनुवाद पढ़ंतु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद श्लोक 13 अनुवाद। वैकुंठ लोक गुड़िक विभिन्न प्रकार विमान मानक द्वारा परिवेष्टित होइथाए। से विमान गुड़िक अत्युज्जल दीप्तिमंत एवं से गुड़िक महान भगवत भक्त मानकर विमान अटे। सेठारे थिबा नारी गण मध्य विद्युत भली चमत्कार सौंदर्य संपन्न, कारण सेमानंकर शरीर वर्ण अति सुंदर दिव्य वर्ण विशिष्ट एवं ए सबु एकत्र होई आकाश मेघमाला और विद्युत द्वारा सुशोभित हेला भली प्रतीयमान हेउथाए। हरे कृष्ण। तेणु वैकुंठ लोक दिव्य विमान थाए जमती मैं जाऊे ट्राफिक जाम रोचे गाड़ी रे तेल सरीगले हैरान होची गाड़ी रे किसी प्रोब्लेम हेले चलुनी किंतु वैकुंठर विमान माने सेमती नुहे। विमान रे मते सेल्फ एफुलजेंट एठी लाइट फाइट किसी दरकार नाही। आउ महान भक्त माने शिशु विमान कौन करती रखी था सेठारे नारी माने माने विद्युत भली समस्ते जाको देखिया अपूर्व सौंदर्य थाए, शारीरिक वर्ण अति सुंदर एवं मेघमाला विद्युत तारा भली से प्रतीयमान होती। किंतु सेठी कौन थाए पुरुष नारीर आकर्षण वैकुंठरे थाए। तेणु आम माने केबे हेले भी वैकुंठ को ई जगत सहित तुलना करिया कथा नु। जेमती बहुत प्रसिद्ध कथा आपण माने समस्ते शुणिथिबे जानथिबे। थर विदेशी लोक माने प्रभुपाद कहले जे आमे चैतन्य महाप्रभु आंबळे देखा होतले त प्रभुपाद कहले तुम मान सब श्वेत पुष्ट हिच। तेणु केबे भी वैकुंठ वा भगवान को निज सहित वा आमे केबे भी आम मन मानस रे चिंता करि परिबेनी। बहुत सुंदर गोटे उपाख्यान रही जहाँ को कहिकी वाणी को विराम देवी आज जे जने भक्त कवि से भगवान कर रूपर वर्णना रे प्राय 4000 ऊर्ध्व पद लिखिते से वैकुंठ को गले से चिंता कले जे मु वास्तव में केते भूल जिनस वर्णना कर भगवान को पद्मलोचन कहा जाए। सेतलागी एई सिद्धांत को प्रतिपादन करिया पई लोचन दास ठाकुर लिखिले लीलार तुलना मिलेना तुमी लीलामय हरि। प्रभु आपणकर रूप को वर्णना करिया पई जगतर कौनसी वस्तु नाही जहाको उपमा दिया जाय परियो। मु आपनको कमल लोचन बोली कहितली हे प्रभु कमल आपणका चक्षुर सौंदर्य आगरे जहाको इत्ते तुच्छ जे वास्तव में मते बहुत दुख लगुच मु एमती उपमा देकी आपणक रूप वर्णना करछि आ जगत रे लोक माने मोर गीत को गाउछन आपन खुशी करिया पे आ आपन भी सेतरे खुशी हे जाउछ। तेणु वास्तव में भगवान कर जो सौंदर्यर वर्णना ये जने तृप्त हो पारिबन। तेणु एभली किछि वर्णना सहित एथरक आगामी काली वैकुंठर किछि वर्णना आसीबो ताको आमे विशद भाव चर्चा करिबा एवं तापर सीधा बाकी श्लोक गुड़ी को संक्षिप्त रे श्रवण करिकी आमे काली चतुश्लोकी भागवतर प्रारंभ रे प्रवेश करिया। जार किछि प्रश्न अछि हरिहर प्रभुकर बहुत प्रश्न अछि। ठीक अछि हरिहर प्रभु आपनकर सीरियली लास्ट को जिबा अमृतेश प्रभुकर प्रश्न अछि कोन से हैंड रेज करछि ना प्रथम प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी से तृतीय भक्त किए जे सो शरीर रे वैकुंठ जाइथिले? घमंड देवाचार्य मु कहले तुकाराम जाइछंती, घमंड देवाचार्य जाइछंती। आउ जण अपन घमंड देवाचार्य निम्बार्क संप्रदाय साधु से। अच्छा आपण कहले 3 जण आउ जणे? आउ जणे से निम्बार्क संप्रदाय वास्तव निम्बार्क संप्रदाय कुहा माने हमर गौड़िया ही किंतु परवर्ती सशरीर से भगवत धाम को जाइछन। अच्छा आ प्रभु जी आपण जो कहले तपस एठी देखंतु ब्रह्मा जी तपस्या माध्यम रे भगवान को पाया को चेष्टा करन किंतु प्रभुपाद सेठी परपटे लक्षण जे तपस्याटा भारी कष्ट साधन तुम माने भक्ति कर
ପ୍ରଭୁପାଦ ଏମିତି ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଜୀବ, ସେ କାହିଁକି ଭକ୍ତି କଲେନି? ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ସେୟା ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ବି ଆମକୁ ତପସ୍ୟା ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ କଳିଯୁଗର ଆସକ୍ତ ଜୀବ ନା, ଆମେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ଶୁଣିଲେ ଭୟ କରିଯିବା। ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇ ତପସ୍ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁଗାର କୋଟେଡ କରିକି ତାକୁ ଭକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତା ତପସ୍ୟାଟା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଆମେ ତପସ୍ୟାଟାକୁ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ସେଟା ଭକ୍ତିରୁ ଅଲଗା। ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ହଉଛି ତପସ୍ୟା। କାରଣ ତପସ୍ୟା ନ କଲା ମାନେ ତପସ୍ୟା ମାନେ କଣ? ତପସ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଡାଇରେକ୍ଟ ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝା ହଉଛି ନା କିଛି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମକୁ ଶୁଣିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ? ସେଇ ଜିନିଷଟା କରୁଛେ ୱିଥ ପ୍ଲିଜିଂ, ମାନେ ଆମର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଅଷ୍ଟେରିଟିଜ୍। ନିଜେ ନିଜେ ଏକାଦଶୀ ଆସିଲା ସେଇଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଲଗା ଦିନ 9ଟା ବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବେନି, ପ୍ଲେଟ ଧରି କେମିତି ପ୍ରସାଦ ହଲକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମନ ବୁଝି ଯାଇଛି ଆଜି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବନି, ବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବନି, ମନ ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଖୁସିର ସହିତ, ଆଉ ସେଇ ଖୁସିଟା ବା ସେଇ ମନଟା ଯେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ମହାନ ତପସ୍ୱୀରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆହାର ନିଦ୍ରାର ମାନେ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ଦିନେ ସ୍ଥିତିକୁ ଜଣେ ଯାଇପାରିବ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଗମ୍ଭୀର ହୁଏ। ଇସ୍କନ ବହୁତ ଗୁରୁବର୍ଗ, ବହୁତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବି କେବେ ସବୁବେଳେ ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଶା କରୁଛେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛେ, ଭାବୁଛେ ଯେ ହଁ ଦିନେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା। ଆଉ କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଭାବିବେ ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁଥିବେ ବା ଅପରାଧ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ନ କରୁଥିବେ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଭାବିବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଦେଖେ, ମତେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ମିଳିତ ଗୋଟେ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ମିଳିତ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଭାଗବତରେ ଆଇଦର ବଳଦେବଙ୍କ ସ୍ତୁତି ପାଇବେ, ଆଇଦର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପାଇବେ। ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରେ କାହାକୁ ପଚାରିବି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯୋଉଥିରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଅଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବଳଦେବଙ୍କ ତିଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛି ତାକୁ। ତେଣୁ ଯାହା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେ ଜିନିଷଟା କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଶୁଣିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ, ହେଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ପଚାରିବା ଦରକାର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ସିଏ କଣ ରୂପରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ। ଏମିତି ତ ନିଜେ ବି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ଇଚ୍ଛା କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କ୍ଲାସ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ମନକୁ ଭାବିବ କେବେ ଯିବା କେବେ ପାଇବା, ସେଟା ତ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ତପସ୍ୟାଟା ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ତପସ୍ୟା ନ କଲେ ଜଣେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ। ସେଥିଲାଗି ଏକାଦଶୀ କରିବା ଦରକାର, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କରିବା ଦରକାର, ବା ଆଜିକାଲି ଆମମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବ୍ରତ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଭକ୍ତମାନେ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟାଇମ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି ବା ଫଳାହାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଶରୀର ନଉଛି, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଶରୀର ପୁରା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଭୋକରେ ଜଳିଲାଣି ପେଟ, ତା ଭିତରେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ରାଗିକି ଗାଳି କଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଉନି, ଏମିତି ବି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଇସ୍କନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର, ଇସ୍କନ ହଉଛି ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଯଦି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯିଏ ପାଇବ, ତାକୁ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରସାଦ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତେ ଜିନିଷ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି, ବଡ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି, ସକାଳୁ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ, ରାବିଡି, ନଡିଆ ଲଡୁ, କୁଟୁ ଅଟା ହାଲୁଆ, ପୁରୀ ଯଦି ଖାଇଲି ଏକାଦଶୀ ପୁରୀ, ତାହେଲେ ତ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ପାରଣ ହିଁ ଦରକାର। ସେଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି କେବେ ଲାଗେନି। ଦେଖିବେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବେ, ସେ ପେଟେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଛି ଏକାଦଶୀ ଦିନ, ଯାଇଛି କାହା ଘରୁ ହାଉସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ, ବଢିଆ ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ ଖାଇଛି, ଆଉ ଯାହା କୁହନ୍ତି ପାଏସ ଖାଇକି ଆସିଛି। ସେଇ ପାଖରେ, ତାରି ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛି ଯେ ନିର୍ଜଳା କରିଛି। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିବ, ସେ ଡରିବ। ସେଦିନ ହାୟରେ ମୁଁ ପେଟେ ଖାଇକି ଆସିଲି। ସେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣ ସରୋଜ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନିର୍ଜଳା କରିଛନ୍ତି, ସେ ହାୟ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ଆଜି। ତେଣୁ ଆମେ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦରକାର। ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଜି କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରେ ପଢିଲେ ପର୍ପଟ ରେ, ଯେ ହରିନାମ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ପରଫେକ୍ସନ ମିଳିବ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମକୁ
जड़े आश्रय माने जड़े बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को आश्रय नहीं कि ए नाम को जप करिया दरकार ताले दुईटी जगह पार्थक्य कौन आमे तार सिद्धांत होची आमे स्पिरिचुअल मास्टर आश्रय रे हरिनाम जप करिया दरकार जड़े केबे भी गुरुंकर बिना कृपारे केबे भी जप करि परिबे बा जदि भी जप करे गोटे बहुत सुंदर चरित्र अछि थारे जने ए गौड़ीय संप्रदाय जने साधक से महाप्रभु को प्राप्त हो जाइतिले आ महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पाखु से प्रथम प्रणाम करिया कहले नित्यानंद प्रभु तक महाप्रभु पाख पठे दे तो महाप्रभु कहले रे बाबू तू तोर गुरु को सेवा कर जा 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 तो गुरु एबे भी धरा पृष्ठ रे अछन गुरु को सेवा न कला पर्यंत जने भगवान को कि भगवान कर नाम को केबे हेले प्रभु करि परिबो नाही जो भली भाबरे देखो आमे समस्त जप करछे जने नूतन भक्त जप करछे जने 30 वर्षर भक्त बसी जप करछे दी जन को जप करिया भितर बहुत तफात रही नूतन भक्त स्ट्रगल करथुव ता पर श्रेणी भक्त से प्रयास करथु ता मनटा लगेया पे ता परिस्थितिर भक्त से 16 108 नाम रु एटलीस्ट 50 टा नाम पंत भगवान के पाखरे मति लगौथु आउ ता पर भक्त तार पूरा 108 रु 108 भक्त लागुथुव प्रति नाम रे भगवान पाखरे ता पर स्थल भक्त से भगवान कर नाम को सबुला चित्त रे रखी भगवान को लीला रे प्रवेश करिया को जाउथु आउ के लीला रे थिबे नाम हरे कृष्ण नाम करछनी जानुथि वर्तमान कृष्ण बलराम बसिकी नंद भवन रे नंद बाबा को पाखरे बसी भोजन करछन सेठी सखी माने आसी भगवान को वर्तमान एई समय जोटी कृष्ण बलराम बसी भगवान तार प्रसाद पान से चिंता करछे तो एई भले तारतम्य रहिছে ना प्रभु तेणु माने बहुत नाम जोटा करवा सबले गुरु को आश्रय श्री गुरु को आश्रय आ जो माने गुरु को ही श्रद्धा दे पारलेनी गुरु को ही जीवन रो प्राधान्य दे पारलेनी गुरु को व्यतीत अन्य साधु मानन को से प्रशंसा करछन कौन कौन बुझिले से मन नाम को कौन पाइले जीवन से मान तेणु मुख्य विषय प्रभु नाम नाम सब किछि दे पारिबे किंतु नाम भी जने साधुंकर करुणा को माने ये करन आगे किंतु माने जे नुआ भक्त नुआ लोक आसला ताको माला मिलला से जप करिया स्टार्ट करला तो से भी प्रभुपाद लिखिचंती आमे जो कृष्ण चेतना आंदोलन जो प्रचार करछे ए कृष्ण चेतना आंदोलन मुख्य लोक हला लोकन को स्वीकृति देवा स्वीकृति माने बुझ पाछन जे पुण्य कोने आपण एटा करन आपण पुण्य स्वीकृति माने से माने यदि गंभीर हबे ए जीवन रे भगवान को पाई परिबे यदि गंभीर न हबे नेक्स्ट लाइफ रे धनाढ्य परिवार रे विप्र कुल रे नले भक्त परिवार रे संजन्म होई के जीवन प्रदान करी तेणु आम मान पाखरे भी सेई नियम टा लागू होचे आमे समस्त भक्त हेचे जणे बेसटा पिन देला तिलक लगे देले जे से भक्त सेटा भाबिया बहुत बहुत बड़ा भूल जिंस तार चेतनाटा कोठी रहउछ आपण देखंतु कृष्णदास कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी पिता को कहि विषय आहुरी खराब शब्द कहि मु सेटा कहिया को चाहू तेणु आम माने ए जो माने चेतनाटा कोठी रखुछे दिन सारा सेटा ऊपर मुख्य विषय आगे धन्यवाद कोच हरे कृष्ण तिलक राम प्रभु आपनकर प्रश्न अछि चारि जन तीन जन जाइतिले तांग विषय टिके जे हमर गमन देवता तांग विषय टिके नंगो से कहि थाले अच्छा त ए घमन देवाचार्य को थरे भगवान स्वप्न रे निर्देश देइतिले जे तुमे मोर लीला को कोन कर जेंति हम सब ड्रामा करछे ना जन्माष्टमी आसला हमर अमृतेश गौर प्रभु तो तांकर जो प्रीचिंग रे बहुत ड्रामा कर तो ड्रामा जो होची ड्रामा टा गोटे बहुत बड़ भगवान कर कृपा जो माने ड्रामा रे अभिनय करंती ता भितरे आगुरु तो हमर झिया पिला माने ड्रामा रे मिसनतले एते किंतु हमर इस्कन झिया माने भी ड्रामा करछन किंतु आगुरु कोन करतले पुआ माने झिया होई कि ड्रामा कर आ हमर कोंदे जो पुआ माने झिया रोल करंती से माने बहुत स्पिरिचुअली एडवांस करंती किंतु एटा को बहुत कदर्य अर्थ रे भी ग्रहण करिया कथा न बेले बेले बहुत खराब इंद्रिय दोष युक्त थाई कि सेमती आचरण करा जाय किंतु महाप्रभु कोन करतले रुक्मिणी कर अभिनय करते देखछि हमर इस्कन हलधर स्वामी महाराज भी थरे नारी रो रोल करतले बहुत हाईली जो माने बहुत उच्च स्थिति रे थांती से नारी रो रोल करन ए जो ड्रामा करिया पे घमंड देवाचार्य भगवान कर आदेश पाइले से कहले मु जदी न देखिबी आ केमती करी तेणु से भगवान को प्रार्थना करिकी नित्य दिव्य गोलोक को जाइतिले
आज जितेबाला से गोलक वृंदावन में पहुंचले भगवान कोठी बसथिले ना जोग पीठरे बसथिले हमर श्रीधाम वृंदावन में 3टी जोग पीठ अछि बा जो माने भक्ति रे बहुत एडवांस करथिवे से माने संध्या वंदन करिया समय जोग पीठर आराधना करंती गायत्री करिया समय 3टी जोग पीठ थाए प्रातः कालीन जोग पीठ माने बुझी पारछन जोग माने युक्त हवा पीठ माने आसन बसिवासन जोग पीठर प्रथम जोग पीठ होछि नंदगांव रे जो वृंदा देवी मंदिर अछि वृंदा देवी पछपट जो स्थान सेटा होछि प्रथम जोग पीठ आ वर्तमान से जोग पीठर समय जोठी कृष्ण बलराम कृष्णଙ୍କ सहित श्रीमती राधाराणी बसी था द्वितीय जोगपीठ मध्याह्न कालीन जोगपीठ श्री राधा कुंड रे आपण मान देखिथिबे गोविंद मंदिर फ्रंट रे गोटे गोल जहा कोनती टाइल कला टाइल पड़ीकी गोटे गोल पिंडी भलिया अछि ता ऊपर गोटे सिंहासन अछि जोतरे गिरिराज को रखा जायछि सेटा होछि द्वितीय जोगपीठ मध्याह्न काल समय सबुठु दिन भितर अधिक समय राधा कुंड रे भगवान रुहंती अर्थात तार समय होछि 11:30 रु 3:30 पर्यंत भगवान सेठी रुहंती तृतीय जोगपीठ हଉଛି श्री गोविंद मंदिर वृंदावन गोविंद मंदिर तो घमंड देवाचार्य जिते नित्य गोलोक को जाइए सेतेबेले से राधा कृष्ण को से जोग पीठरे बसिथिबार देखिले से भगवान को पचारे जे प्रभु मो ड्रामा करेबी केमती करी तेणु भगवान तांकर मुकुट आपण देखिथिबे बांके बिहारी आमर इस्कन भुवनेश्वर भी कृष्ण बलराम सेमती मुकुट अछि तो से मुकुट गोटे काढ़िकी निज केशरु काढ़िकी भगवान घमंड देवाचार्य को देले आ श्रीमती राधाराणी तांकर केरी आपण देखिबे वृंदावन मंदिर रे केबे राधाराणी को मुकुट पिंधा जायनी गोटे आंब भलिया कसी आंब भलिया गोटे जिंस ताको केरी कहा जाए सेटा मां माने बुझी पारथबे बा आपण वृंदावन ने केबे राधाराणी को श्रृंगार देखिबे मथा माळ ऊपर गोटे केरी लागि थाए गोटे बंका चिन्ह भली सेटाकू राधाराणी प्रदान करथिले घमंड देवाचार्य को आ कहिथिले पवित्र ब्राह्मण कुल विप्र कुल रे उत्पन्न जो माननकू शरीर रे काम विकार आसी नथिवो सेई माननकू नै कि तुमे आमर लीलार अभिनय आरंभ करियो आ सेटा प्रथमे घमंड देवाचार्य आस्थिले आपण केतले रंग देवींकर गां को गले जति केबे अमृतेश्वर को मु तो कहबी आमे बहुत थरे टूर करू आ बहुत दिव्य अनुभूति आपण प्राप्त करिवे अष्ट सखींकर गां को केतले यात्रा करिवे वर्षना टूर रे अष्ट सखींकर मोर फेसबुक रे मु ए फोटो गुडी को शेयर भी करछि वीडियो भी शेयर करछि केमती आमर जतले हम पढु रहुतलु वृंदावन रे सेतबेले आमे सब एई भळे यात्रा करू आपण माने भी चाहिले यात्रा करि परिवे मात्र 500 टंका 300 टंका होछि ऑटो नव आ 200 टंका प्रसाद बहुत सुंदर सुखद यात्रा करि परिवे जदि आपण चाहिबे इस्कन वृंदावन तरफ भी मंदिर तरफ भी यात्रा होछि केबे गृहस्थ भक्त माने ए यात्रार सुजोग नवा दरकार बहुत सुंदर सेठी रंगदेवी सखींकर गां रे तांको मंदिर रे आज भी ओरिजिनल भगवान कर से जो मुकुट अछि जदि जने भाग्यवान भक्त ताको दर्शन करे से भगवान हाँ एटा होछि केरी जोटा अमृतेश्वर शेयर करछंती एटा होछि श्रीमती राधाराणी कर केरी भगवान कर मुकुट बांके बिहारी कर मुकुट जेमती सेई भली भावरे भगवान मुकुट दैछिते ओरिजिनल अछि नेक्स्ट क्लास रे जदि हबो मु ओरिजिनल फोटो को शेयर कर दे केते गुडे दुर्लभ वस्तु अछि जहा को देखिले जने वैकुंठ को जाई परिवो जेमती भगवान कर एई मुकुट आ श्रीजी कर केरी रूप गोस्वामी कर अक्षर आपण इस्कन वृंदावन पाखरे गोटे सरकारी संस्था अछि जा ना होछि वृंदावन सौध सेठी हमर रूप सनातनकर धरोहर सब अछि तांकर ग्रंथ तांकर दिव्य वस्त्र कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत रे वर्णना करचंती श्री रूपेर अक्षर जेन मुकुतार धार बहुत दिन तले मो मोबाइल रे मोर रूप गोस्वामी कर लेटर गुडा भी थिला मोर हार्ड डिस्क रे अछि किंतु मोर मोबाइल टी दुर्भाग्यवश खराब हो जायछि आज मु गोटे नुआ मोबाइल किनिबी किनिले मु केबे भविष्यत रे भी आपन को शेयर करि परिबी रूप गोस्वामी कर हैंड राइटिंग कविराज गोस्वामी लिखिन ये अक्षर को जे देखियो से भगवान को पाइजु आपण भाबंतु भक्ति जीवन टा केते सहज दुर्भाग्यवश तो एई सब जिंस रे हमर मन नाही आमे अन्य जिंस संग्रह परिग्रह रे लागि रहिछि प्रकृत रे जे माने बुद्धिमान व्यक्ति से माने मृत्यु पूर्व एई सब जिंस को संग्रह करिया दरकार आ वैष्णव मान को दबा दरकार आमे जेते बांटीबा हमर एई सब जिंस गुडी को सेते बढ़िबो घमंड देवाचार्य एई भडी भाबरे आपण मान जो रासलीला देखंती वृंदावन गले सेटा को नित्य बोली चिंता करा जाय
पूर्व क्लास रे तिलकराम प्रभु मु गोटे चरित्र भी कहितली केमती रासलीला नृत्य आपण ऑडियो रू सुनी पारिबे। ठीक अछि वर्तमान धारावाहिक भाव में हरिहर प्रभुकर बहुत प्रश्न। पचारन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी प्रथम जो आप क्वेश्चन टा जो कहले ब्रह्मचारी मान पांचटा माने रूल्स एंड रेगुलेशन दीटा कहते आउ तीनटा रही जाइए तेणु समस्त प्रश्न सेटा थिला किंतु केही कहले ताको आपण काई सुनिया को चाहउछनी प्रभु नहीं प्रभु अमृतदास प्रभु कहउथिले तो आपनकर थिला मो ताकू कहिली। अच्छा तो प्रथमे होची ब्रह्मचारी माने तांकर हमर साधु समाज रे जते बेश निया जाए ए कसाय वस्त्र जणे निये गुरु ताको केते बडे नियम कहंती। प्रथमे होची आसन बड पवित्र रहया दरकार। काहे की पवित्र रहया दरकार कारण के खराब भाबिबेनी हम मानकू जते बडे हम मन रे किछि विकार आसे खराब चिंता धारा आसे यदि हम आसनटा पवित्र थिबो आमे जदि जाई कि से आसन रे बसी पड़िबा आम मन पुनः भगवान पाखे लागि जीवो सेत लगी आसन को बड़ पवित्र रखिया दरकार। द्वितीय रे होची हमरो पीवा पानी बोतल पानी पात्र कमंडल जहा को कहा जाए सेटा बड़ पवित्र रहया दरकार। आपण वृंदावन रे गोटे आश्रम अछि जहा दिन को मात्र 2 घंटा खोले सेतरे जो बांके बिहारी को जे प्रकट करथिले हरिदास जी तांकर कमंडल अछि आ से मंदिर चरणामृत होची से कमंडल जल आउ से संप्रदाय रे विश्वास करा जाए यदि से कमंडल जल किए पी दिए से भगवान को प्राप्त हो जाए भगवान को रास रे प्रवेश करियर अधिकारी हो। तो मु प्राय जते बेले जाए कंपलसरी सेठी चरणामृत पाई के आसे आ मु भी आशा करी जदि आपण माने केबे जीवार सुजोग पाइबे आ बहुत कि मूल्य दवा पड़िबो आपण मात्र 2 घंटा मंदिर खोले सेठी आपण को धैर्यर सहित अपेक्षा करिया पड़िबो एवं एभली कहा जाए जे कली काल कली जुग आज भी से आश्रम भितरे प्रवेश करिन से आश्रम भितरे कौन सी लाइट नहीं कौन सी प्रकार आधुनिक फैसिलिटी आज भी नहीं संध्या हला माने 5:30 मंदिर बंद हो और राति आरंभ हला माने दीप सब जलियो आपण को लागिवो जो प्राचीन महाभारत बा रामायण टीवी रे सीरियल देखले सेही भली लागिवो केतेबेले जाई कि जगार ना होची टटिया स्थान केतेबेले जाई कि दर्शन करिकी आसीबे। गोस्वामी हरिदासंकर 2 जण शिष्य थिले जणे थिले ब्रह्मचारी जणे थिले गृहस्थ गृहस्थ माननकु बांके बिहारी को प्रदान कले जहा आज दिव्य परंपरा रे गृहस्थ परंपरा सेवा चलची आ ब्रह्मचारी माननकु गोटे विग्रह देथिले जहार ना होची राधिका मोहन बिहारी जू अति अपूर्व विग्रह और आसर रज उपरे बाली उपरे ठाकुर बसचंती केतबेले जाई कि से प्रभु को दर्शन करिवे आ सेठी बुंदी भोग लागे आपण मन जब जिवे आपण से मानकु सेठिकार जो वैष्णव माने बुंदी देवे आपण केबे पाई के आसीबे कि अपूर्व स्वाद आउ सेठी सब भजन गान होतो आपण केबे सुनिवे अद्भुत ए सब माने अनुभूति आपण यार लाभ उठिया दरकार। प्रथमे होची आसन द्वितीय रे होची जा कोंती तांकर कमंडल बा पानी पात्र तृतीय रे होची निजर जा कोंती संध्या वंदन ए जिन सोडा करे बड़ा गंभीर रहना दरकार। चतुर्थ रे होची निजर जपमाला आ पंचम रे होची इष्ट निष्ठा रे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत सुंदर कही निजर आध्यात्मिक गुरु गौर नित्यानंद एवं राधा कृष्ण प्रति गभीर निष्ठा रहा दरकार विरक्त हिसाब रे ताहले आम जीवन रे आमे कल्याण कर परिबे निजु। ठीक अच्छे समय अति हे गलानी जो माने चाहिए जाई परिबे आपण हां पचरन थरियर प्रभु बहुत दिन आपण मना करा हैछि प्रभु जी आगुरु कहथिले जे गोटे क्लास रे जे पूरी परिक्रमा रो द्वितीय दिनटा अछि सेटा किंतु टिके उहिय रहि गला मु टिके जानिया परिक्रमा पूरी परिक्रमा गोटे दिन ही मु आपण कहथि वर्ष रे मोर वर्तमान मने पडुनी मु लेखिक रखछि परे केतला आपण कहि दे वर्ष रे गोटे दिन अछि जो दिन रे पूरी श्रीमंदिर जो परिक्रमा वर्तमान तो नवीन पटनायक से परिक्रमा पर प्रकल्प भी कर देलनि
से परिक्रमा श्रीमंदिर परिक्रमा कले आपण गोटे जीवन रे जगन्नाथंकर सेवा पाई परिबे एई जो श्री विग्रह सेवा कि आमे माने प्रभु यार रिक्स उठेवा कथा नुहे आमे गुरुदेव को प्रार्थना करे दरकार एई जीवन रे से जगन्नाथ जे मदन मोहन रूप रे अछंती मदन गोपाल रूप रे आमे तांकु जाई सेवा करिवाटा होची बुद्धिमान र काम। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक अच्छे वर्तमान वाणी को विराम दौचे आगामी काले चतुश्लोकी भागवत प्रारंभ करवा गुरु वैष्णव कृपा वांछा प्रभु जी कल्पतरुभ्यश्च 34 श्लोक भागवत कोठ आरंभ होईची चतुश्लोकी भागवत श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद नवम अध्याय आज्ञा 33 34 35 एवं 36 आज्ञा प्रभु जी काली मु नेट ये मु मारथिली गूगल सर्च करथिली सेठी देखला 3 अध्याय रो माने तृतीय स्कंदर 9 अध्याय रो 3 4 5 सेंट कोन देखैला इते मु ना देखली ना आपण ना तो एठी ना, कोजन एटा मु कहली सेठी संपूर्ण कोन से श्लोक गुड़ा भी देइची नहीं नहीं श्लोक नहीं गुड़ा मु गोटे स्क्रीनशॉट करके एटा रखिदेली सार्वजन दिखे द्वितीय स्कंद आज्ञा नवम अध्याय तृतीय स्कंद भूल आज्ञा यदि भूल देखथिबे आपण आज्ञा तेणु मु तो ଦେଇଥିଲି ପ୍ରସନ୍ନ ହରିପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସାରିଦେବି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୋଉ ଯାକେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ବ୍ୟାସ ରୂପରେ ନେଇଗଲେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଠିକଣା ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ସାରିଦେବି ଯଦି ନ ନେଇ ପାରିଲି ତାହେଲେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ବିରତି ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କ୍ଲାସ ବଢିପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରେଟରେ ଯାଉଛି जो वर्षा जनित जो माने नेटवर्क एते प्रोब्लेम रहउची मो बहुत दुखित आपण माने यदि किछि असुविधा अनुभव करछन से हम क्षमा मागुची एमती एक परिस्थिति रे एठी रहिची कटि जाउची प्रयास करा होची जे किभଳି पुनः ठीक हे जिवो आ बहुत बड़ बड़ लोक को धारा हेची कोहा हेची आशा करछि कालीठू क्लास ठिकणा भाबरे हेई पारियो किंतु प्रभु जी काली भी क्लास नबा हम श्रीपाद गौरांग प्रभुଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ ରେ କୁହନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫେଲ୍ସ ଆଟ୍ ଦି ଟାଇମ ଅଫ ନେସେସିଟି ସେଥିଲାଗି ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏଇ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ର କିଛି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଅନ ସାଇଟ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ୟୁଜ ଅଫ ବ୍ୟାଡ ବାର୍ଗେନ ର ଇଏଟାକୁ ନବା ଦରକାର ଜଗଜନନୀ ମାତାଜୀଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभु जी तो जी ये मत पचारियार थिला कि मु सुनिथिली कि भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु और ब्रह्मा जी जो से कमल ऊपर बसन से भितरे कोन 14 भुवन आसुचे ता भितरे जो पद्म नाड़ भितरे 14 भुवन अछि सेटा आपण माने कोडी फिफ्थ कोडी एक्सप्लेन हेछि भागवत रे से तार रेफरेंस ता मिल परियो मते हाँ हाँ रेफरेंस मिल पारे फिफ्थ कैंटो आपण आगु को धैर्य सहित अपेक्षा करंतु तृतीय स्कंदरे बहुत सुंदर भक्त माने आसीबे सेठी स्वल्प वर्णना आसीबो एवं फिफ्थ कैंटो रे डिटेल्स आसीबो पूरा माने केमती लोक ता भितरे कोन अछि केतोटी गछ अछि केतोटी नदी अछि केमती पवन बहे पूरा डिटेल्स फिफ्थ कैंटो रे आपण पाइबे मैं आपको कही गोटे बहुत सुंदर यात्रा यात्रा रे बहुत अनुभूति आ बहुत प्रकार वस्तु आपण लाभ करी केवल धैर्य धरी प्रति क्लास माने अटेंड करियार अछि ठीक अछि वाणी को विराम दोचे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय गौर जय प्रेमानंद। श्री